Hello, sir. How are you? हेलो हाय हाउ आर यू। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. परफेक्ट। कैसे आप? हाँ जी सर एकदम फर्स्ट क्लास. You can hear me? यस यस कंप्लीटली। Excellent, sir. Excellent. So, sir, I'll just set up and should I share my screen and we can start immediately? या प्लीज। हाउ लॉन्ग इट विल बी फॉर 2 hours और लेस? Yes, sir. Minimum 2 hours, but we can also break it if there's an emergency or something. I'm flexible. So if you want to like maybe when you feel that okay, you have enough information and you are saturated, then we can do the rest part maybe in another meeting. That's fine. ओके सो वी कैन इफ इट्स ओके वी कैन स्प्लिट इट लाइक अभी आज जैसे जो हमारी नीड है वो अपन पहले वो वाली चीजें टारगेट करते हैं तो वो हम सीख लेते हैं। रेस्ट जो बाकी चीजें है वो अपन फिर मंडे या ट्यूसडे प्लान अप कर लेंगे। No problem, sir. तो exactly what is the requirement अभी मतलब what is your urgency जो तो आपको वही मैंने समझना है? बताया था ना हमारी एक्सेल शीट है और हमको उनको ईमेल्स भेजना है टेम्पलेट बना के मतलब Okay, ईमेल ड्राफ्ट ठीक है, करके इट शुड गो टू अराउंड 7,000 कॉन्टैक्ट्स वी हैव। तो उनको ठीक है. या 7,500 तो उन कॉन्टैक्ट्स को हमें ये वाली जो मेल ट्रिगर्स करनी है तो इसलिए ठीक है सर तो मैं I'll start with that. So I'm sharing my screen. या You can see my screen. या All right, sir. So I'll just briefly. आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना तो ये भी मुझसे शेयर कर लो। No problem, sir. ठीक है. So I'll share with you the video after the session. या So basically क्या है सर Mailchimp. अगर मोटा मोटा we are trying to start our email marketing and Mailchimp is basically it is a tool for email marketing. So आज का जो सेशन है वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टूल एंड हाउ टू मैक्सिमाइज आर efficiency of our communication of our email marketing and our uh, digital marketing efforts and how we can use emails to the best. So Mailchimp is a tool for email marketing. Why it is one of the best tools for email marketing? It has good delivery, 99% delivery rate to inbox. It is one of the easiest tools, easy to use tools. All your data in one place, meaning to say you can actually use Mailchimp as a CRM. So if you have noticed कि Mailchimp के आजकल जो जितने भी if you see their marketing campaigns, they have grown out of their name. Earlier they were only concentrating on email, but Mailchimp is now it's a all-in-one marketing tool. You can make landing pages for your campaigns. अब जैसे email campaigns भेजते हैं, email campaign is not enough. End of the day we want results from the emails. तो ईमेल्स के बाद बंदा जो करेगा वी हैव टू गिव देम अ लिंक इन द ईमेल एंड वो लिंक क्लिक करके वो कहीं पे जाएगा और इंफॉर्मेशन देगा या कुछ खरीदेगा. तो वो जो लिंक होती है दैट हैज टू बी लिंक टू अ लैंडिंग पेज. सो मेलचिम्प यू कैन मेक अ लैंडिंग पेज. यू कैन ऑल्सो डू सोशल मीडिया थ्रू मेलचिम्प नाउ. सो अगर आपकी जैसे ईमेल लिस्ट है 7,500 लोगों की, आप इनको रीटारगेट करना चाहते हो फेसबुक में और लिंक्डइन में, ट्विटर में, तो यू कैन एक्चुअली ऑल्सो यूज योर लिस्ट डायरेक्टली फ्रॉम मेलचिम्प एंड सेंड देम अ सोशल मीडिया कैंपेन डायरेक्टली फ्रॉम मेलचिम्प. आपको फेसबुक में अलग से एड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. सो दीज आर वेरी बिग एडवांटेजेस. आज के सेशन में वी विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सम सर्टन एस्पेक्ट. सो नंबर वन, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, हाउ टू basically account setup. पहले थोड़ा सा because you are starting up, so we'll talk about account setup. Next we will talk about lists, list management, segmentation कि आप कैसे अपने जो आपकी लिस्ट है 7,500 लोगों की, आप उनको कैसे सेगमेंट कर सकते हो. ईमेल डिजाइन, कैंपेन सेटअप और ऑटोमेशन.
अगर आपको लगता है कि आज के सेशन में ऑटोमेशन कवर नहीं करनी तो वी कैन डू इट इन अ नेक्स्ट सेशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. Although in list management, in list management and segmentation, I would like to get more details about merge tags because ये जो है email design में से related होता है, तो I will briefly talk about merge tags. So you are able to hear me, sir? Yeah, perfect. All right. So sir, अभी मैं account में जाता हूँ and I'll start the process. तो सबसे पहले हम Mailchimp account में जाएंगे. I will do it right from the beginning. आपका सर Mailchimp account है? Yeah, we do. Okay. So I will send you a request to your Mailchimp account also, so that if you want, I can directly do the first step, which is account setup in your account. So should I give you the account or how? You don't need to share your passwords or anything with me. I will just send you a request to your account, and you just need to approve it. So I am just adding you as a client, and you will receive a request from me, and your account will automatically get linked with me. So should I send the request to your email ID? Yeah. Okay. It's wait. Yeah, username is HGM. Okay. सर आई थिंक ओके, आपको सर एक मेल आ जाएगी, आप एक बार चेक कर लीजिए. मेल मेरे को मेल ही आएगी ना उसकी. हाँ जी सर. ओके. अभी तक तो मेरे को आई नहीं है. मैंने एक बारी सर आप अपने ओके रिव्यू दिस रिक्वेस्ट. हाँ जी. Grant access, yeah. Sir, please kindly select admin privilege. Oi, I just did it grant. I just gave you the access. I'm so sorry. Like वो मैंने वो select नहीं किया admin. Okay. No problem. अभी आप logged in हो? हाँ. Okay. So आपको मेरी screen दिख रही है. So very simple to change access. Edit कर लो उसको. हाँ जी सर, यू कैन जस्ट गो इनटू अकाउंट्स. आपके ऊपर टॉप राइट पे ये ड्रॉप डाउन होगा. एडमिन बना दूं? हाँ जी सर, एडमिन. हाँ ठीक है. या डन. ओके. सो अब जैसे कि आपने अप्रूव किया, सो दैट यू नो दिस इज आल्सो द बेस्ट पार्ट अबाउट मेलचिम्प, दैट अगर आपकी टीम में you want to delegate access to several employees, you can add your employees also as an user. So उसका advantage ये होता है, you can give them different privilege. If you don't want your design team or your marketing team to see your data or your customer data, so you can just give them manager level access. So उससे क्या होगा, they can design the campaign, they can set up the campaign, but they cannot see the lists. So that way you can also give various types of account access. वो कहाँ पे होता है? You can just go to settings. Should I come to your screen back? Definitely, sir. Okay. Wait. Yeah. So you can see over here that you can actually add several users, whoever you wish to add. You can just click on invite a user, and you can add, if you want to add an employee. So suppose in this, for example, Ankit is gonna do the mail trigger to all the contact list. So should I add his ID also? Yes, you can add Ankit as a manager, because he will have access of list. And in future, if you want my support in only in the editing of emails, then you can add me as an author. You can change my privilege from admin to author. And if you want somebody to only see the reports, like let's say you have somebody, your SEO guy, he wants to see the reports of his work, so he can be added as a viewer also. But in this, the person who is a manager has full access
except for billing and add-ons and user management and list export. So इसमें he can create the template and send it to all the list. Correct. He can create the template. He can also see the list, but he cannot export the list. अच्छा. All right. Yeah. Only the admin can export the list also. So Export आप the कैसे list means? export the list means कि I'll explain you the process. जब आप list में अपने सारे contacts डालते हो and you want to download the list तो उसको export process बोलते हैं. अच्छा. हाँ जी. So that means basically export means that you can download the data. So the manager cannot download the data, but he can manage the data in your own account. Okay. So अभी जैसे कि आपने मुझे account access दे दिया, so now the advantage is I don't need the password. I can just your account will get linked to mine. So I can just your account is in the name of Sonic Biochem. Yeah. So I just type Sonic and see the account. Let me log back in again. All right, so I'm logging in. So your account is there, so I can just log into your account. तो ये आपका Mailchimp का डैशबोर्ड है. I'll just give you an overview now first about the dashboard. Mailchimp में सबसे ऊपर आपका जो होता है create option, you can create an email landing page. This is any action item you want to do immediately. The first link is to create. सेकेंड लिंक इज आपको अगर अपने ऑडियंस मैनेज करना है अपनी लिस्ट तो ये ऑडियंस टैब होता है उसके लिए. आपको अपनी कैंपेन्स देखनी है जो आप बना रहे हो या जो आप भेज चुके हो या उसकी रिपोर्ट्स तो वो कैंपेन में मिलती हैं. अगर आपने कोई ईमेल सीरीज ऑटोमेट करी हुई है तो वो आप ऑटोमेशन में देख सकते हो. Website is again for your landing page and website. This is a beta version of their new website builder. So you can also design a complete website within Mailchimp. कंटेंट स्टूडियो इज जब भी आप कोई फोटो अपलोड करते हो, कोई पीडीएफ अपलोड करते हो जो कि आपके ईमेल में जिसकी ज़रूरत है, कोई भी आर्टवर्क कोई भी क्रिएटिव, तो वो कंटेंट स्टूडियो के अंदर आपको मिलेगा. एंड इंटीग्रेशंस इज लाइक इफ यू वांट टू कनेक्ट योर वेबसाइट विद योर Mailchimp और यू वांट टू कनेक्ट योर पेपैल और यू वांट टू कनेक्ट योर सोशल मीडिया विद योर Mailchimp, तो वो सब इंटीग्रेशन में मिलता है. सो दिस इज योर मोटा एवरीथिंग दैट यू नीड इज एट द टॉप. On the right side is your profile. आप इस पे जब क्लिक करोगे तो you can actually go into account settings and you can manage your account settings. So some of the important things that are there in the first is the billing section. You can see your plan. You can see what is your estimated cost from the billing tab. So billing tab में सबसे पहला जो tab है monthly plans. It will tell you your this month's bill. It will tell you your estimated total. अगर आपकी इस महीने कोई चेंज हुआ है ऑडियंस में, बिकॉज Mailchimp विल बिल यू पर ऑडियंस. तो अगर आपका स्लैब बढ़ गया है तो वो एस्टिमेटेड टोटल यहाँ पे बता देता है पहले से ही. इफ़ यू वांट टू डू अ वन टाइम कैंपेन, यू डोंट वांट टू डू अ मंथली सब्सक्रिप्शन, तो आप क्रेडिट्स भी खरीद सकते हो. सो दिस इज द प्राइसेस फॉर द क्रेडिट्स. बट इफ़ यू वांट टू, ईमेल मार्केटिंग तभी काम करती है जब आप लॉन्ग टर्म काम करते हो. So it is always better to go for a monthly plan. But I do understand that there is a value for this because many times there is an urgent campaign. You don't want to do anything long term, but आपको immediately campaign भेजनी है. Let's say आपको 5,000 लोगों को भेजनी है तो आप क्रेडिट खरीद सकते हो 5,000 का. 11,000 रुपये कुछ का है ये क्रेडिट, and you can send 5,000 emails immediately. So, but the monthly actually ends up to be cheaper. So it's always better to use the monthly plan. And after the billing section, you can of course see the billing information like आपका कौन सा कोई credit card saved है और आपकी order receipts billing history में मिल सकती हैं. Apart from that, extras इसमें सिर्फ एक चीज़ समझने वाली है. API keys is only needed जब आप integration करते हो. रेफरल्स इज इम्पोर्टेंट. रेफरल्स क्या है? बेसिकली जब आप फ्री अकाउंट होता है Mailchimp का, तो Mailchimp अपनी हर ईमेल के नीचे एक लोगो डालता है Mailchimp का. तो जब आपका अकाउंट प्रीमियम हो जाता है तो आप इसको अनचेक कर सकते हो. अभी ये चेक्ड है और मेरे पास प्रिविलेज है कि मैं इसको अनचेक कर सकता हूँ, और मैं इसको जैसे ही अनचेक करूंगा एंड आई विल सेव इट, सो इट विल नॉट शो द कैंपेन्स. इट विल नॉट शो. हाँ जी.
सो इसको अभी हमने ऑफ कर दिया है एंड यू कैन सी हियर दैट बेसिकली द फंडा इज दैट जो आपकी कैंपेन के नीचे मेलचिम का लोगो होता है, अगर वो लोगो पे कोई क्लिक करके अकाउंट साइन अप करता है तो यू गेट अ $30 क्रेडिट. So this is also like a way of how Mailchimp does referral marketing for its own business. But anyways, if you don't see any value in this, you can always disable it. So this is important extras में referrals में. उसके अलावा thirdly settings में आपको जैसे मैंने ये तो first step ही था जब आपने मुझे as a user add किया, तो you can add users in over here. Second most important thing is security and contact information is basic. Security is like अगर आपको 2 factor authentication करना है, पासवर्ड बदलना है, तो वो यहाँ से कर सकते हो. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, मैं इसमें आऊँगा अभी इसके बाद. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर कैंपेन इज जो आपको जरूरत पड़ेगी पहली कैंपेन में इज डोमेन्स. सो डोमेन्स में क्या होता है, जैसे आपको कोई अब आपकी जो वेबसाइट है सर, इफ यू डोंट माइंड, सोनिक biochem.co.in, तो आपका ये वेबसाइट है, तो आपकी जो ईमेल जाएगी वो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली इट विल गो फ्रॉम लेट्स से marketing at Sonic Biochem. So let us assume that you are sending your email from marketing, or let us say communications. तो ये आपका ईमेल आईडी है जो आप यूज करोगे कैंपेन भेजने के लिए. तो आपको सबसे पहले अपना डोमेन ऐड करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप अपना डोमेन ऐड करोगे एंड यू विल वेरीफाई इट. सो एज आई कैन सी दैट दिस प्रोसेस इज ऑलरेडी डन, व्हिच इज वेरी गुड. बट डोमेन में वी कैन चेंज आल्सो, नो? करेक्ट. सो आपको अगर कोई डोमेन नया ऐड करना है, तो मेरा ईमेल आईडी है, जस्ट कैन यू ऐड, शो मी हाउ टू ऐड माइन, बिकॉज़ आई वांट टू सेंड इट फ्रॉम माय ईमेल आईडी ऑलवेज, लाइक टू. ओके, सो प्लीज टेल मी योर ईमेल एड्रेस. hgm @Sonic Biochem biochem.co.in. Yeah, that's send all. verification email. So आपको अब एक कोड आएगा and you will just give me that code and we will be able to verify your email address. Yeah, one second. अभी आप लोग का सैटरडे ऑफ रहता है यूजुअली? नहीं सर, सैटरडे को वी आर वर्किंग. इनफैक्ट सैटरडे को नॉर्मली मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स आर इन यूएस, सो सैटरडे को वो लोग तो काम करते नहीं है. सो वी आर एबल टू डू आवर पेंडिंग वर्क. बहुत सारा पेंडिंग काम हो जाता है पूरे हफ्ते का, जो पूरा बॉटल नेक हो जाता है वो सैटरडे को होता है. सो सैटरडे इज ऑल्सो बिजी डे, बट जनरली सैटरडे को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती. अच्छा, ओके, गॉट इट. ये मैंने कर दिया है. All right, sir. अच्छा, you have verified it? I think. Okay. Is it done? मैं एक बार देख लेता हूँ. SonicBiochem.co.in is now verified for sending. Okay, perfect. Yeah, it looks like it is verified. So एक चीज और हमें करनी होती है, this आपका एक बार बट इसमें मेरा ईमेल आईडी तो दिख नहीं रहा है. आपका सर वो ऑडियंस में दिखेगा. व्हेन जब हम ऑडियंस सेटअप करेंगे देन आई विल बी. अच्छा, हो गया वो वेरीफाई. हाँ जी. सो वंस दिस योर आपका डोमेन एक बार ऐड हो गया, जिस ईमेल से आप भेजोगे, ऑब्वियसली डोमेन इज इंपॉर्टेंट. आप आईडी बाद में बदल भी सकते हो, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सिर्फ एक दोबारा से वेरिफिकेशन कोड आएगा. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि डोमेन ऐड होना और उसको वेरीफाई करना, बिकॉज द सर्वर्स दे ऑलवेज एनालाइज द डोमेन. ID can always be different, it can be mail@Sonic Biochem, it can be accounts@Sonic Biochem. So you can always change. Those are role-based email accounts. You can always change the ID, but the domain is very important. So आपने ये domain add हो गया आपका verification process में, but last step होती है authenticate की. Authentication का meaning क्या होता है? Basically
Mailchimp will send emails on your behalf. But when Gmail or Hotmail or Yahoo, जब उनको email आती है, if you see any of these emails which have come to your inbox, let's say this email has come, it will always analyze who is the domain which is sending the email. What happens is, the dichotomy happens is that when they analyze the domain, they see that the domain is hosted in another company, but the server used to send the email was Mailchimp. So there is a disconnect. So to avoid this disconnect, we authenticate your domain with Mailchimp. उससे क्या होता है कि जब Mailchimp आपकी email भेजता है, तो उसके email के signature में आपके domain के records पड़े होते हैं. सो जीमेल को पता है कि ये जो ईमेल आई है ये 100% वेरीफाइड ईमेल है, बिकॉज यू नो द स्पैमर्स एंड लॉट ऑफ, आपने देखा होगा कि काफ़ी ईमेल्स आती है नाइजीरिया से, अफ्रीका से, विद यू नो फेक ईमेल अकाउंट, एंड दे फेक डिफरेंट आईडीज. सो ऑथेंटिकेशन की एडवांटेज ये होती है दैट ऑल ऑफ दीज ईमेल प्रोवाइडर्स दे नो कि ये आईडी जो है ये पक्की है, ये फेक नहीं है. एंड सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या करना होता है, बस ये 2 रिकॉर्ड्स हैं, सी नेम, ये 2 सी नेम रिकॉर्ड्स हैं, ये आपको अपने अकाउंट में डालने होते हैं, डोमेन के अकाउंट में. वैसे तो ये सिंपल प्रोसेस है, तो मैं इस पे मतलब आई विल नॉट गिव यू टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस, बिकॉज ये बैक ऑफिस काम है, ये मैं सेशन के बाद भी कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने अगले 2 महीने तक वी विल बी प्रोवाइडिंग यू सपोर्ट. सो ये सब चीज़ें सेशन के बाद भी हो सकती हैं. अब मुझे आपके डोमेन का एक्सेस चाहिए होगा, और उस डोमेन में फिर मैं ये 2 रिकॉर्ड्स डालूंगा. ये आप खुद भी कर सकते हो. यू हैव हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, एंड उसमें काफ़ी अच्छे से हमने समझाया है कि रिकॉर्ड्स कैसे डालते हैं डोमेन में. सो आई विल शेयर दिस वीडियो. ये अगर आप आफ्टर द सेशन आई शेयर दिस लिंक विद यू. सो ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था 2-3 साल पहले, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हैं, एंड पीपल यू नो आर वेरी थैंकफुल दैट यू नो बिकॉज दे गेट देयर प्रॉब्लम इज सॉल्व वाचिंग द वीडियो. सो अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख के भी कर सकते हो. आई विल सेंड दिस लिंक आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम. एंड या अगर आप चाहते हो कि मैं करूं तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद मुझे अपने डोमेन का जहाँ पे भी डोमेन रजिस्टर्ड है, अगर GoDaddy पे है तो आप GoDaddy का मुझे एक्सेस डेलीगेट कर सकते हैं, एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दिस. सो ये आपका प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट सेटअप में विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स. सो हम पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में देखेंगे. वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब आप ईमेल बना के भेजते हो तो आपका जो फुटर होता है, जैसे कि ये कोई, मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ईमेल दिखाता हूँ जो न्यूज़लेटर, सो लेट अस गो इन एनी ऑफ द न्यूज़लेटर्स. कोई भी ईमेल अगर आप देखोगे तो ये नीचे फुटर आता है हमेशा. दिस इज यू नो यू हैव टू कम, दिस इज एक्चुअली अ लॉ that you have to provide unsubscribe links and you know वगैरह वगैरह, and your information copyright and etc. So ये जो footer में जो information आती है, ये आपको हर ईमेल में टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चली जाती है. तो मेलचिम्प जो है ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने आप ईमेल टेम्पलेट में इंसर्ट कर देता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार आप नज़र मार लीजिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है. अगर कुछ करेक्ट नहीं है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं. टेलीफोन नंबर मिसिंग है, आप डाल सकते हैं इसमें. Should I put the number if you want? या भले मेरा डाल दीजिए. हाँ जी बताइए सर. +91 okay 808 okay 56 okay 10000. Yeah. okay I think that's it. all right perfect. So उसके अलावा आपका एड्रेस सब कुछ सही है, बढ़िया है. ईमेल इज फाइन. बिलिंग इंफॉर्मेशन इज फाइन. बिलिंग इंफॉर्मेशन में आप यू कैन पुट योर कंपनी नेम, वो मिसिंग है तो वी कैन जस्ट से आप सेम एज कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो. तो उससे क्या है कि आपको फिर से रिकॉर्ड डालने की जरूरत नहीं है. तो ये आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट. एंड मोस्टली ट्रेनिंग चल रही है.
आपकी ऑडियंस फील्ड मैनेज है, एवरीथिंग इज नाउ परफेक्ट। सो आपकी ईमेल आईडी अभी के माटा है, तो ये चेंज करनी है ना, राइट? आपको HGM कह रहे थे ना आप? हाँ, HGM। तो वो चेंज कर देते हैं यहाँ पे, HGM @sonicbakam.co.in। परफेक्ट। ये अपनी का ये ईमेल आईडी कौन सा, फॉर व्हाट पर्पस? सो ये एक्चुअली में दिस इज योर प्राइमरी अकाउंट ओके। इन्फॉर्मेशन। सो अच्छा, तो मेरी मेल आईडी से जाएगी फिर मेल। हाँ जी, यस, ठीक है। ये आपकी ईमेल आईडी सेव हो गई। या परफेक्ट। एंड इसमें मेरे को एक और ईमेल आईडी एज अ मैनेजर अंकित को ऐड करना, तो प्लीज वो कर लेगा अभी। हाँ जी, वी कैन गो इनटू सेटिंग्स एंड देन यूजर्स। यप। तो अंकित, अच्छा, उसके लिए आईडी हाउ ही विल लॉग इन फ्रॉम हिज कंप्यूटर? He will just sign up with a MailChimp account first, a free sign up account, and then he will just select. I'll just give you a demo how he will log in. So पहले आप अंकित को बोल सकते हो कि वो अपना एक इंडिविजुअल पर्सनल MailChimp अकाउंट बनाए। लेकिन ये वही वाली आईडी से जो आईडी अपन ऐड करेंगे अपने इस पे? नहीं सर, वो अपनी खुद की आईडी से लॉग इन करेगा। तो मतलब ये अपनी पर्सनल आईडी से मेलचिम्प का अकाउंट बनाया? यस करेक्ट। जैसे देखिए, ये मेरी पर्सनल आईडी है, रॉबी कोहली 123। अपनी तुम्हारी जो जीमेल की आईडी हो, उससे पहले अपना तुम कोई भी फ्री अकाउंट बना लेना। मैं जो तुम्हारी एमकेटी वाली आईडी है वो मैं अपने इस पे ऐड करवा लूंगा, तो वो मैं समझाता हूँ अभी, ही एक्सप्लेन, अभी वो बताएंगे। तो तुम्हारा पहला काम है, तुम अपनी पुरानी मतलब जो तुम्हारी पर्सनल मेल आईडी है उससे आज शाम में जाके एक फ्री अकाउंट बना लेना, ठीक है? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक बारी जैसे अंकित का अकाउंट होगा, व्हेन अंकित सर विल लॉग इन, he will just enter his personal ID and password, and when he will log in, he can see all the connected accounts. So इस केस में he will see Sonic Biochem, so he can just click on Sonic Biochem and he will be able to log into your account. अच्छा, मतलब खुद का अकाउंट बनाने के बाद ही विल सी सोनिक बागम? Yes, correct, because आप जब उनको यूजर बनाओगे तो then he will see the connected account. अभी obviously आपने connect नहीं किया है, but after you connect him, so if you want you can already send him an invite, और फिर Mailchimp step by step उनको खुद ही बता देगा कि कैसे connect करना है। बट अगर उसको अपना पर्सनल आईडी बनाना जरूरी है? हाँ, उसको बनाना जरूरी है, और वो Mailchimp अगर आईडी नहीं है तो Mailchimp वो भी बनवा के देगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, वो बहुत सिंपल होता है। वो Mailchimp आप ईमेल भेजेगा, जैसे आप अपना पर्सनल आईडी बताइए अंकित का, सो वी कैन ऐड हिम। पर्सनल आईडी के बेसिकली जैसे मेरा HGM है, तो ही आल्सो हैज हिज ऑफिस ईमेल आईडी, तो वो बताए तो ज्यादा ऑफिशियल रहेगा। वो बेटर है, वो बेटर है। MKT है उसका, mkt@sonicbakam.co.in, मार्केटिंग का mkt@sonicbakam.co.in। या तो इट्स हिज आईडी, और उसको मैनेजर बनाना है ना अभी इसमें। ओके, तो वो अभी हमें एडमिन की प्रिविलेज है और ऑथर की है, मैनेजर की नहीं है। वो अकाउंट जब अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद कर पाओगे। ओके, आप एडमिन बना दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, mkt@sonicbakam.co.in। हाँ, सही है मेल आईडी। तो अब आपको एक इनविटेशन आएगी अंकित जी, एंड यू कैन इजीली साइन अप। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएगा, दैट वो बोलेगा लॉग इन विद योर अकाउंट। इफ यू डू नॉट हैव एन अकाउंट, पर्सनल आईडी का जरूरत नहीं है, फिर इसी से हो जाएगा। इसी से हो जाएगा, यस। ऑफिशियली एमकेटी वाले आईडी से रखना, ठीक है? ठीक है सर, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। यस। नेक्स्ट स्टेप जो छोटी मोटी चेंजेस हैं, लेकिन छोटे मोटे जरूर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सेटिंग्स में जाके देन वी क्लिक ऑन डिटेल्स। यहाँ पे आपकी जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है, कंपनी का नाम, यू कैन जस्ट अगर आपको कुछ आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप इसको बेशक बड़ा कर दीजिए, बिकॉज ये आपके टेम्पलेट में आता है। और अगर कोई साइन अप फॉर्म, जो भी साइन अप हटा देते भले, सोनिक बागम एक्सट्रैक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ही रहने दो। ओके, ये आपका कोई मतलब जरूरी नहीं। ये इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट नेम, बिकॉज सिर्फ टेम्पलेट में नहीं आता है। जैसे आपके कोई साइन अप फॉर्म होते हैं, जब एक बंदा अनसब्सक्राइब का बटन दबाता है या प्रेफरेंस का बटन दबाता है, तो आपका एक कंपनी पेज खुलता है। टाइम जोन GMT +5.5 कर देगा, -4.5 ये बहुत क्रिटिकल होता है। मैं इसी पे आने वाला था कि टाइम जो है आप इंडिया टाइम जरूर कीजिए,
बिकॉज कई बार क्या होता है, टाइमिंग अगर गलत हो तो शेड्यूलिंग गलत हो जाती है। तो आप इंडिया का +5 ये रहा गया। हाँ, ये सेव कर दीजिए। यस। उसके बाद आप थोड़ा सा अपने इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी, वो बेटर रिपोर्ट्स। इंडस्ट्रीज सर क्या होंगी रेलेवेंट आपकी? रेलेवेंट फूड इंग्रेडिएंट्स। फूड इंग्रेडिएंट्स, लेट मी सी। एग्रीकल्चर एंड फूड सर्विसेज। नहीं, सॉरी, एक पर्सनल कंसल्टेंट या मैन्युफैक्चरिंग। इसमें नीचे फूड, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ही ठीक है। फूड इंग्रेडिएंट्स का है क्या कुछ? फूड इंग्रेडिएंट्स का नहीं है तो फिर वील गो टू मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नहीं है, ठीक है। विटामिन सप्लीमेंट्स है। अब वो कभी कुछ डिटेल में पूछेगा तो वी विल से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स है। You can put the organization size also, so उससे आपको रिपोर्ट्स ज़्यादा रेलेवेंट देंगे। So you can select, नीचे आ जाइए, 500 to 1000। How old is the organization? It's 23. 11 plus, very good. तो इससे क्या है कि मेलजिम जो है आपको रेलेवेंट रिपोर्ट देगा आपकी बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड मेलजिम खुद भी सजेशन देता है कि दिस इज कई बिजनेस होते हैं जिसमें सीजनैलिटी इन्वॉल्व होती है, टाइमिंग इन्वॉल्व होता है, तो मेलजिम अपने आप आपको बताएगा कि ये टाइम अच्छा है मेल भेजने का और इसको मेल भेजो। आपको कोई न्यूज़लेटर चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट किया, आप छोड़ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। और ये जो है ये मैनेज, even our company newsletter also we can send it to how many people we want. यस करेक्ट। Okay, got it. और इसके अलावा ये जो है रिजेक्ट ऑटोमेटिक रिप्लाईज, इसको बेशक अनचेक रहने दीजिए, बिकॉज एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको ऑटोमेटिक रिप्लाईज आ रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग श्री जी, हाउ आर यू? Sir, actually, sir, I am in a MailChimp training program. Can I just call you back within 1.5 hour? Yeah. The reason I called you for, I'll make it quick. We need to have a call with the technical team, Sumanta. Okay, sir. And Okay, one more person. Okay, sir. Just for them to kind of this thing. And Okay. I sent you the corrections last night. I don't Yes, know if you checked. yes, I got it, sir. I thank you so much. I'll they will be done within few hours. Okay, great. I'll wait for your call. Thanks. Done. Sorry, sir. So इसको क्या है कि आप इसको अभी खाली छोड़ सकते हो, बट फ्यूचर में ये काम आता है, क्योंकि ये कई बार ना क्या होता है, ऑटोमेटिक रिप्लाईज बहुत सारे आते हैं। जैसे जो कई बार कोई वेकेशन पे जाता है तो वो ऑटो रिस्पॉन्स डाल देता है ना, तो वो ऑटो रिस्पॉन्स जो है ये अपने आप मेलचिम्प उसको रिजेक्ट कर देगा। तो बट यू कैन लीव इट बैक सो दैट यू शुड नो कि किसका रिप्लाई आ रहा है किसका नहीं, सो यू जस्ट सेव इट। तो अब आपका ये जो है अकाउंट सेटअप जो है, ये मोटा मोटा आपका अकाउंट सेटअप हो गया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एस्पेक्ट। आपका एक डोमेन वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, वो हम मीटिंग के बाद कर सकते हैं। आप मुझे डोमेन के बारे में बता सकते हो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, और मैं आपके लिए कर दूंगा, नहीं तो ये वीडियो लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप वीडियो से अपनी टीम से भी करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो इम्पोर्टेंट है, वी विल स्टार्ट विद आवर अकाउंट सेटअप इज डन। बट डोमेन वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? डोमेन वेरिफिकेशन करने का बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। आप अपने डोमेन में जाइए बाय गोइंग टू सेटिंग्स एंड देन डोमेन। यहाँ पे आपको जो ये इस वाले डोमेन को वेरीफाई करना है, तो आप क्लिक करोगे ऑथेंटिकेट पे। ऑथेंटिकेट पे ये बोल रहा है क्रिएट अ सीनेम रिकॉर्ड फॉर दिस विद दिस वैल्यू। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप पहले इसको कॉपी करोगे, कॉपी करके आपका डोमेन जहाँ पे भी रजिस्टर्ड है, मान लीजिए आपका डोमेन GoDaddy में रजिस्टर्ड है, तो आप GoDaddy में जाओगे, अकाउंट साइन इन करोगे, आपका डोमेन में आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुई है, सो आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। sonicbiochem.co.in आपका डोमेन है Znet में, सो Znet में लॉगिन करना होगा।
Zlet में लॉग्ड इन है, बट यू आर एक्चुअली यूजिंग अ क्लाउड होस्ट डीएनएस। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको जो आपका जो डीएनएस मैनेज हो रहा है वो आपके सर्वर से ही हो रहा है, तो आप यू विल जस्ट हैव टू लॉग इन टू योर सर्वर। आपका अमेजोन पे होस्टेड है क्या साइट? नहीं, अलीबाबा पे है, बट Sonic, I'll tell you, text hosting. Most probably ये आपका ठीक है, ये डोमेन वाला मैं वेरीफाई करवा लूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, I totally understand. So I'm sure आपकी टीम जो है आपको हाँ, वो एक्चुअली I also don't know completely, तो I'll speak to माटा जी, तो उनसे एक बार पूछ लूंगा कि अपना डोमेन वेरीफाई करना। करेक्ट डोमेन वाला डोमेन करेक्ट। इन फैक्ट आप माटा जी को अगर वीडियो दिखाएंगे तो वो एकदम से ही विल बी एबल टू ग्रैब इट, बिकॉज जो भी जिसने भी वेबसाइट बनाया है उसके लिए इट विल बी अ 1 minute जॉब। या सो दिस इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट मैं वैसे मोटा मोटा आपको बताता हूँ। जैसे ये एक डोमेन है, तो उसको उसमें रिकॉर्ड्स कहाँ पे डलते हैं, ये डीएनएस होता है, डोमेन नेमिंग सर्विस। हर डोमेन के पास एक डीएनएस रिकॉर्ड होता है, वो आपको डोमेन जहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है वहाँ पे मिलता है। बस यहाँ पे जाके अब आपको यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, आपने ऐड करके एक नया सी नेम रिकॉर्ड, इसको सी नेम बोलते हैं। यहाँ पे आप वो वैल्यू डालोगे होस्ट की, यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू डालोगे, और .2 में आप ये वाली वैल्यू डालोगे। ये आपका प्रोसेस हो गया। TTL जितना है डिफॉल्ट उतना रहने दीजिए, बट मेरे हिसाब से जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अब इसमें मिनिमम आधे घंटे का देता है, तो मैं आधे घंटे का TTL दे रहा हूँ और मैं सेव कर रहा हूँ, दैट्स इट, खत्म। उसी तरह एक सीनेम ऐड हो गया, उसके बाद दूसरा सीनेम ऐड करना है। जब ये दोनों सीनेम ठीक से ऑथेंटिकेट होंगे, तो जब आप ये ऑथेंटिकेट का बटन दबाओगे तो आपके डोमेन के आगे एक ये ग्रीन बटन आ जाएगा। अच्छा, एक बार ग्रीन बटन आ गया, दैट मीन्स ये डोमेन जो है आपका प्रॉपरली ऑथेंटिकेट हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई ऑथेंटिकेटेड अकाउंट दिखाता हूँ आपको, तो अब अगर आप यहाँ पे डोमेन्स में देखोगे तो यहाँ पे ये ऑथेंटिकेट, ये ग्रीन बटन आ जाएगा। ओके, बस ये एक बार ये ग्रीन हो गया, दैट मीन्स योर ईमेल इज 100% नाउ ऑथेंटिकेटेड। बट वैसे आपको मतलब यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी सिर्फ ये है कि डोमेन वेरीफाइड होना चाहिए। आप ईमेल भेज जरूर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि ऑथेंटिकेट करके भेजा जाए। खासकर पहली कैंपेन है तो जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से भेजो पहली कैंपेन, उतना ज़्यादा बेटर तो होता ये है। हम करवा लेंगे, ऑथेंटिकेट करा के फिर ही भेजेंगे। ठीक है सर, तो आपका ये प्रोसेस हो गया, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका प्रोसेस डन हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं हम, लिस्ट मैनेजमेंट की। तो लिस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली आपके जो ऑडियंस है, मेलचिम्प जिसको ऑडियंस बोलता है, और हम ट्रेडिशनल सेंस में हम बोलते हैं अपनी हमारी लिस्ट। तो यहाँ पे हम अपनी लिस्ट को मैनेज करते हैं। सो जनरली सबसे पहला स्टेप तो होता है कि लिस्ट को मैनेज करने से पहले आपको एक ऑडियंस का कोई नाम देना है। तो यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर, यहाँ पे जो आपका मैनेज ऑडियंस का बटन है, एंड यहाँ पे सबसे नीचे ड्रॉप डाउन में जाएंगे व्यू ऑडियंसेस। आप एक से ज़्यादा अकाउंट ऑडियंस बना सकते हो, लेकिन जो फ्री अकाउंट होता है उसमें आप एक ही ऑडियंस बना सकते हो। तो अभी आपको एक वैसे भी अभी ज़रूरत एक ही ऑडियंस की है, तो हम सबसे पहले एक ऑडियंस बनाएंगे। तो आपने देखा जब आपने अकाउंट खोला था तो आपने जो कंपनी का नाम डाला उसी नाम से एक ऑडियंस बन जाता है। तो हम इसी ऑडियंस को यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देते हैं, अब इसका नाम हम भी वो कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट गो टू द ऑडियंस सेटिंग्स। सबसे पहले यहाँ पे आपकी ऑडियंस सेटिंग में आपसे अलग अलग सेटिंग्स पूछ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑब्वियसली ये पहली वाली है। GDPR फील्ड्स आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। पब्लिसिटी सेटिंग्स आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज जस्ट कि जो आपकी कैंपेन्स हैं वो सर्च हो सकती है या नहीं, बट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होती है मेलचिम्प की। इसमें ज़्यादा डिटेल इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ बेसिकली ऑडियंस नेम एंड डिफ़ॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऑडियंस फील्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिक्वायर्ड ईमेल फुटर कंटेंट। ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये थोड़े एडवांस फीचर होते हैं, वेब हुक
और गूगल एनालिटिक्स बेसिकली आपकी ईमेल्स जो देख रहा है उसके बाद आपके वेबसाइट पे जाता है, ये उसको भी ट्रैक करता है। सिर्फ आपकी ईमेल्स को ट्रैक नहीं करता, ईमेल खोलने के बाद अगर वो आपके वेबसाइट पे जाता है तो ये पूरा उसका जो ट्रेजेक्टरी है आपके यूजर का उसको मैप करने लगता है। तो ये सब जो उसके लिए होता है, ये इसकी अभी जरूरत नहीं है, सो वी विल नॉट टच इट। तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस नेम एंड डिफॉल्ट्स। आपका ऑडियंस नेम सेटअप कर देते हैं, बायोकेम एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये आपका सेव हो गया। Yep. अब यहाँ पे आप जो है अपना फ्रॉम नेम आपका हो गया हर्ष, राइट? Yeah. HGM। Yeah. तो ये जो है ये फ्रॉम ईमेल हो गया, ये फ्रॉम नेम। अब जब भी आप कैंपेन हर्ष, बनाओगे, just do it full name ना, हर्ष स्पेस मत लानी, MATLN। Yeah, that's perfect. तो ये बाय डिफॉल्ट आपके कैंपेन में सेट होता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। डिफॉल्ट सब्जेक्ट लाइन इसको रहने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती सर। सेंड फाइनल वेलकम है, ये तब का टिक करना होता है अगर आपकी डबल ऑप्ट इन है, लेकिन आपका डबल ऑप्ट इन नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है सर। Okay. ये आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो, जैसे अगर कोई सब्सक्राइब करता है या कोई अनसब्सक्राइब करता है, अगर आप रिपोर्ट डायरेक्टली चाहते हो कि आपकी ईमेल में नोटिफिकेशन आए, आपको बार बार मेलचिम्प में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो आप वो यहाँ पे अपनी ईमेल भी डाल सकते हो। आप चाहते हो आपको नोटिफिकेशन आए अगर कोई सब्सक्राइब कर रहा है, कोई अनसब्सक्राइब कर रहा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अच्छा। इससे क्या है कि जैसे आप इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे अंकित जी अकाउंट आपका मैनेज कर रहे हैं, तो जो भी आपकी अकाउंट एक्टिविटी होगी वो आपको भी एक हाँ, नोटिफिकेशन। right, कोई इशू नहीं। So I'll be updated. यस यू विल बी। सो आपको बार बार अकाउंट लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। और एक ये ईमेल डेली डाइजेस्ट टू, इसमें क्या है कि जैसे आपके कोई जो एंड ऑफ द डे समरी होती है, दिन में एक बारी वो डाइजेस्ट भेजता है कि आज आपके अकाउंट में ये चेंज हुआ पहले से। Yeah. इसको आप बाद में हटा सकते हो, अभी मैं सेव कर रहा हूँ, उसके बाद बाद में नहीं रहना, कोई इशू नहीं है, सही है। हाँ जी। वो आ तो ये जाएगी आप, आपके पास। हाँ। हाँ जी। सो ये आपका जो है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब अगेन हम ऑडियंस में जाएंगे। नाउ सेकेंड स्टेप करने के लिए वी विल अगेन गो बैक टू योर सेटिंग्स। अब हमने ऑडियंस नेम कर लिया। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी आपका रिक्वायर्ड ईमेल फुटर। मैं मर्ज टैग्स को बाद में छेड़ूंगा, पहले रिक्वायर्ड ईमेल फुटर कंटेंट में जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा ये लीगली ये एक रिक्वायरमेंट है कि हमें बताना पड़ता है मेलचिम्प को कि ये जो सब्सक्राइबर है ये कैसे आया आपके रिकॉर्ड में, बिकॉज बाय अकॉर्डिंग टू लॉ अ सब्सक्राइबर हैज अ राइट टू नो कि ये जो ईमेल उसको आई है वो ईमेल उसको किस पर्पज से आई है, या वो कौन सी लिस्ट में बिलोंग करता है, वो कैसे आया। तो जैसे अगर मुझे एडिडास की एक ईमेल आ रही है कि आप ये जूता खरीदो, या मुझे एक HDFC बैंक से आ रही है कि आप ये क्रेडिट कार्ड खरीदो, सो मेरे को एक आई हैव अ लीगल राइट टू नो कि HDFC को मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि आपको सब्सक्राइबर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो यहाँ पे आप जनरली व्हाट आई रिकमेंड इज, आपके जो आप जो 7,500 ईमेल्स भेज रहे हो वो आपके कस्टमर्स हैं या आपकी लिस्ट आपकी लीड्स हैं या आपके कोई अननोन कॉन्टैक्ट्स हैं। लीड्स। आपकी लीड्स हैं। यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू हैव रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, you have requested more information about our company। आप अपना कंपनी का नाम डाल सकते हो, अबाउट सोनिक बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड, एक्सट्रैक्शन राइट, या प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि और थोड़ा सा और इसको पक्का करने के लिए आप अपने वेबसाइट का URL भी डाल सकते हो। अच्छा, ये आपका वेबसाइट का URL। ये देखिए, ये आपकी न्यूज़लेटर ऑलरेडी एक लिंक है,
बेटर ये होता है कि आप कस्टमर लॉगिन, ओके, सर अगर मुझे आपको एक लीड भेजनी है तो मैं कैसे भेजूंगा? कोई कांटेक्ट फॉर्म है इस वेबसाइट में? हाँ, कहाँ पे सर? ये आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन का ही है, नीचे इंक्वायरी। ओके, तो आप ये लिंक दे सकते हैं। हाउ कैन रिसिपिएंट्स कांटेक्ट यू? यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। या हर्ष मतलानी। HMG राइट? HGM। HGM। फोन नंबर सर? +91 हाँ जी, 808 हाँ जी, 56 हाँ जी। 10000। या ये आपका ठीक है। तो आपने आपकी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हो गई। अब आपका फुटर पक्का हो गया एंड आपकी ऑडियंस सेटिंग्स पक्की होगी। अब जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। सो वी आर गोइंग टू नाउ टच दिस एस्पेक्ट विच इज मर्ज टैग्स। सेटिंग्स में जाएंगे हम और हम जाएंगे ऑडियंस फील्ड में। अब यहाँ पे आपकी ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट में आपकी फील्ड लेबल एक कॉलम है। ये है जो जो आपके कॉलम्स, आपके टेबल, जो आपकी कस्टमर की डेटा आपके पास है, ये उसके लेबल्स हैं। वो रिक्वायर्ड है कि नहीं, मतलब जो आप लिस्ट जब इंपोर्ट करोगे तो आप कोई कंडीशन डाल सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं भी हो तो वो ले लेगा, लेकिन अगर आपने रिक्वायर्ड टिक कर दिया तो वो इंपोर्ट करेगा ही नहीं अगर लास्ट नेम मिसिंग है तो ये रिक्वायर्ड हो गया। विजिबल का मतलब क्या होता है? विजिबल का मतलब है बेसिकली मेलचिम्प एक साइन अप फॉर्म बनाता है। जैसे आपका अभी ये साइन अप फॉर्म है, इसको आप कॉन्टैक्ट फॉर्म कहते हो, लेकिन मेलचिम्प इसको साइन अप फॉर्म भी बुलाता है। तो मेलचिम्प आपको एक डिफॉल्ट साइन अप फॉर्म देता है, अपने आप कोड करके बाय डिफॉल्ट देता है। वो साइन अप फॉर्म में आपकी ये डिटेल्स अपने आपने जो ऑडियंस फील्ड में ये लेबल्स बनाया अपने आप वो उसकी फॉर्म की फील्ड्स बना देता है। तो अगर आपने विजिबल किया है तो फॉर्म में ये वैल्यू जो है ये फील्ड एक रिप्रेजेंट होगी। अगर आपने इनविजिबल अनचेक किया है तो वो साइन अप फॉर्म में नहीं दिखेगी। बट यूजुअली अभी अगर आप साइन अप फॉर्म नहीं बना रहे मेलचिम्प के तो आपको इसको आप रेलिवेंट नहीं है, इसको आप टिक भी कर सकते हो, इसको आप छोड़ भी सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट बाय डिफॉल्ट जो है आप बर्थडे को अनचेक कर सकते हो, आप टाइटल प्रीफिक्स ये अनचेक कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम जनरली। क्योंकि अगर बाय चांस आप फ्यूचर में फॉर्म यूज करोगे भी तो वो ज़्यादा सिंपल और अच्छा लगेगा। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आप डाल सकते हो। हर कंपनी की अलग अलग होती है, बट ज़्यादातर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो होता ही है। एड्रेस, फ़ोन नंबर, बर्थडे, कंपनी नेम, वेबसाइट एड्रेस, टाइटल, प्रीफिक्स, ज़्यादातर ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से लगी हुई है, तो आई थिंक दिस इज़ फाइन। उसके बाद जो आपका चौथा टैग कॉलम होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये है कि टैग का नाम क्या है। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम जरूरी होते हैं, बिकॉज ये जब आपको ईमेल के अंदर कंटेंट दिखाना है, जैसे आपको करना है डियर हर्ष, डियर अंकित, डियर रॉबी, अपने आप वो ईमेल उसके नाम से जाए तो आपको जो है करना पड़ेगा डियर एफ नेम। तो ये जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि ये इसको लेबल कह लो या इसको टैग कह लो या इसको वेरिएबल नेम कह लो। ये बेसिकली एक वेरिएबल नेम है जो आपकी डेटा को रिप्रेजेंट करता है इस कॉलम की। तो आप इसका नाम जो है इसको ऐसा रखो कि आपको याद रहे। जैसे कंपनी नेम है, इसका आप नाम कर सकते हो कंपनी, सो दैट कई बार ईमेल बनाते समय बंदा भूल जाता है कि ये मर्ज 6 है कि मर्ज 7 है, मर्ज 8 है, क्योंकि नंबर से याद नहीं रहता। तो आप इसको डायरेक्ट लेबल दे दो। इसको आप वेबसाइट बुला सकते हो, इसको आप टाइटल बुला सकते हो, इसको आप प्रीफिक्स बना सकते हो, और आपने सेव कर दिया। ओके।
बाय एंड लार्ज अब आपको क्या करना है एक्चुअली में, आपको जो आपकी एक्सेल फाइल होती है ना, आपने वो एक्सेल फाइल खोल के आपने देखना है आपके कितने कॉलम्स हैं अच्छा, आपके जो। इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, अंकित से भी पूछ रहा हूँ, कुछ उसकी क्वेरीज आ रही हो तो हाथों हाथ सॉल्व करता चला। हाँ जी। अंकित, मुझको इसमें पूछना है कि जैसे मर्ज वाला जो लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ तो हाँ बता देता हूँ। हाँ। बट मेरा क्वेश्चन है कि जैसे इसमें जो मर्ज वाला जो लिखा हुआ है, बट इससे मतलब ये जैसे हम बाद में हर एक में चेंज करना पड़ेगा या एक बार का ही वन शॉट, मतलब एक बार ये वन शॉट है, ये एक बार चेंज करना होगा बस आपको। ओके और कोशिश, हाँ, हाँ जी जी बताएं। एक बार डेटा इंपोर्ट हो जाती है उसके बाद अगर आपने फील्ड डिलीट कर दी तो उसके बाद उसकी डेटा भी डिलीट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें डेटा इंपोर्ट करने से पहले जो आपकी एक्सेल फाइल है, जो आपकी डेटा है ना, आप उसको स्टडी कर लो और बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग फील्ड्स बना दो। जैसे आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, अब आप टाइटल को सैल्यूटेशन बनाते हो तो आप यहाँ पे टाइटल की जगह सैल्यूटेशन कर दो, सो दैट आपकी डेटा पहले से ही मैप हो जाए। अगर बट आपकी जो हमारी जैसे सपोज जो एक्सेल मेरे पास अभी है करंटली, वो एक्सेल का जो फॉर्मेट है, क्या अपन उस फॉर्मेट में ही उसको चेंज ना करते हुए उस फॉर्मेट को अपन यहाँ वैसा सेट कर सकते हैं? बेटर बेटर यही है कि जो आपका एक्सेल का फॉर्मेट है आप उसको मत छेड़ो, आप एक्सेल फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे सेटअप करो। वही वही मेरा, क्योंकि वो फिर वरना 7500 सबको चेंज करने में बहुत वो फिर कुछ बिगड़ गया, कुछ इधर उधर हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, आप अपने एक्सेल के हिसाब से, वही मैपिंग का प्रोसेस यही है। एक्सेल तो मैं फॉरवर्ड करूंगा, एक्सेल का फॉर्मेट देख के फिर उसके हिसाब से यहाँ पे अपडेट करूंगा। एक काम करेंगे सर, एक स्टैंडर्ड बना देंगे, स्टैंडर्ड के हिसाब से वही तो बोल रहा हूँ कि एक्सेल को स्टडी करके एक्सेल का क्या स्टैंडर्ड और फॉर्मेट है, मतलब क्या कॉलम्स है, कैसे रोज उसकी सिलेक्टेड है, क्या हेडिंग्स है, वही सेम अपन फिर यहाँ पे उसके हिसाब से सेम। आप ये सेशन के बाद मेरे को भेज सकते हो, आप अपनी ना एक्सेल की, आप मुझे सारी डेटा मत भेजो, आप मुझे पहले के 3-4 रिकॉर्ड भेज दो तो मैं स्टडी करके मैं भी सेटअप कर सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। ये आपके सपोर्ट में कवर्ड है, सो आप ये हमारी कंपनी कर सकती है बाद में। मैं अंकित को शेयर कर लूंगा, अंकित आपसे थोड़ा 5-10 आपको दिखा के फॉर एन एग्जांपल वे में आपको मेल कर देगा। हाँ जी, हाँ जी। बट वैसे मैं आपको बता दूं फॉर द इंफॉर्मेशन, ये तो डिफॉल्ट सेटिंग्स है, ये हाँ। ये अमेरिका के हिसाब से है। इसमें प्रॉब्लम होती है कई बार फ्यूचर में, जैसे ये फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन फील्ड है, इसको आप डिलीट कर दीजिए। बिकॉज इसमें क्या होता है, अगर आप +91 डालोगे तो प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। हाँ वो है, क्योंकि अपन क्या इंटरनेशनल है तो फिर हर एक का कोड वो दिक्कत देगा। ये दिक्कत देता है, कई बार डैश होता है तो डैश में दिक्कत देता हाँ है। हाँ, भले आप हटा दो इसको, अपन तो नेम, ईमेल, एक सेकंड, एक काम करते हैं ना, मैं आपको अभी फॉर्मेट ही बता देता हूँ ना, मेरे पास सेव्ड ही है वो। आपके पास है तो आप दे दो, अभी हाथों हाथ कर ठीक है, दो। मैं अभी खोल ही लेता हूँ एक, क्योंकि यही मैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम है तो ये कर ही लेता हूँ। हाँ, ये हाथों हाथ कर लेते हैं। तो हाँ देखो, जी। मैं कोई ऑफिशियल ट्रेनर तो हूँ नहीं एक्चुअली, मैं खुद यस, तो फर्स्ट कॉलम इज आईडी, उसमें आईडी में 1 2 3 4 पूरी नंबरिंग चल रही है। नंबरिंग उसकी फिर जरूरत नहीं है कॉलम वैसे आईडी की। ठीक है, तो आईडी फर्स्ट हो गया, आईडी के बाद आता है कंपनी नेम, ओके सेकंड इज कंपनी नेम, ओके, ये डन हो गया। थर्ड इज वेब एड्रेस, उनकी कंपनी का वेब एड्रेस क्या है। ये भी डन हो गया। उसके बाद है प्रीफिक्स, ये भी हो मिस्टर गया। मिसेस या जो भी। ये भी डन हो गया। उसके बाद फिर सर है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हो गया। फिर है सेकंड, फिर अगले कॉलम में मिडिल नेम, अच्छा, मिडिल नेम है। अगले रो में मतलब आएंगे। ओके, फिर उसके बाद है लास्ट नेम। आपके 4 नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम ऐसे है? नहीं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अच्छा अच्छा, तो लास्ट नेम तो आपका ऑलरेडी है, तो हमें हाँ। एक और नई फील्ड बनानी पड़ेगी या मिडिल नेम के नाम से। हाँ, वो आज फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर है टाइटल, कि वो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कि वो डायरेक्टर है क्या है, तो उनका फिर उसका टाइटल है, लास्ट नेम के बाद टाइटल है। टाइटल भी आ गया। टाइटल के बाद है एड्रेस, कंपनी का एड्रेस। कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर नहीं है ना? मैं बता रहा आ रहा हूँ उस पर। अब ये है कि एड्रेस के बाद देयर इज एड्रेस 1, लेकिन वो एड्रेस 1 का कॉलम पूरा खाली है। ओके, तो वो डालना जरूरी है क्या, खाली कॉलम? नहीं, फिर उसकी जरूरत नहीं है अगर डेटा नहीं है तो।
ठीक है, फिर है एड्रेस 1 के बाद है सिटी। ओके सर, मैं एक सेकंड डाल देता हूँ हाथों हाथ। तो एड्रेस के बाद एड्रेस 1, बट एड्रेस 1 कॉलम इज एम्प्टी, तो वी डोंट हैव टू पुट इट। उसके बाद है सिटी। ओके या ठीक है, एड्रेस हो गया आपका। या इसमें अपन कितने भी कॉलम डाल सकते हैं ना। इसमें आप जितने मर्जी हो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपका हो गया सिटी। और कोशिश करो जब आप कॉलम बनाते हो तो सबका फॉर्मेट टेक्स्ट रखो, वो सबसे सेफ होता है। ओके, तो सिटी के बाद आ गया स्टेट। ओके ओके स्टेट के बाद आ गया जिप कोड, अगला ओके कॉलम। ओके ZIP पूरा कैपिटल है, ओके सॉरी। या अगला है कंट्री। ओके कंट्री में ओनली C कैपिटल, दैट्स इट। कंट्री के बाद है फोन नंबर। अब फोन नंबर आप बोल रहे हो नहीं डाल, लेकिन इसमें है। मेरा कहने का मतलब था जो डिफॉल्ट अमेरिका के हिसाब से जो फोन नंबर है ना, वो फॉर्मेट काम नहीं करता कई बार, क्योंकि उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। वो ब्रैकेट नहीं लेता, वो डैश नहीं लेता। तो हाँ, फोन नंबर जो जो डिफॉल्ट मेलचिम का फोन नंबर है वो डिलीट कर दिया करो और अपना खुद से ऐड कर लो, क्योंकि क्या होता है। फोन नंबर का इसमें लिस्ट में तो फोन नंबर का कॉलम है, बट अब मेरे को फोन नंबर से लेना देना नहीं है, मेरे को तो मेल से लेना देना। कोई बात नहीं, आप फिर भी बना लो, हाँ क्योंकि ठीक है, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो डेटा है तो क्यों ना ठीक है। तो आगे चल फोन के नंबर काम आ के बाद जाएगा। आता है रेवेन्यू। एक बस अब सेकंड। लास्ट अपने 3 कॉलम और है रेवेन्यू के बाद। फोन नंबर है रेवेन्यू। ओके या देन एम्प्लॉइज। ओके देन इट्स SIC कोड। तो SIC इज फुल कैपिटल। SIC। SIC ओके कैपिटल फुल कैप्स। SIC एंड देन कंटिन्यूशन में ही CODE। C कैपिटल, ODE स्मॉल। ऐसे है। हाँ बस। देन इज लास्ट वन इज ईमेल, बस। ईमेल तो सर बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद ईमेल है तो अपन डाल सकते हैं ईमेल का कॉलम, की डालने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, ये तो अपने आप ईमेल, आपका ईमेल ईमेल एड्रेस है या सिर्फ ईमेल लिखा है? ईमेल लिखा है और उसके नीचे सबके ईमेल एड्रेस है, हर कंपनी के सबके। ठीक है। मतलब वो ईमेल वाला कॉलम है। आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में फर्स्ट और नेम के बीच में स्पेस है या एक साथ है? फर्स्ट नेम का एक कॉलम, मिडिल नेम का एक कॉलम, लास्ट नेम का अलग कॉलम। नहीं, मैं स्पेलिंग पूछ रहा हूँ। फर्स्ट नेम की स्पेलिंग ऐसे ही है जैसे हमने सेटअप करी है? एक सेकंड, एक सेकंड। आपने
हाँ फर्स्ट नेम लास्ट नहीं लास्ट एक सेकंड फर्स्ट नेम के बाद मिडिल नेम है फिर लास्ट नेम है। हाँ ये मिडिल नेम ऐसे ही किया हुआ है ना, मिडिल उसके बाद स्पेस फिर नेम। नहीं अपना जो सीक्वेंस है मैं एक बार सीक्वेंस रिपीट कर दूं पूरा। सीक्वेंस से मैटर नहीं करता सर, बिकॉज डेटा जब जाएगी तो वो बाद में हम चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा हाँ तो फिर तो मेरे ख्याल से ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये मिडिल नेम प्रीफिक्स टाइटल एड्रेस ये सब तो हाँ स्टेट जिप कोड कंट्री फोन नंबर रेवेन्यू एम्प्लॉइज एसआईसी कोड और ईमेल हाँ बस परफेक्ट यही है सब। अच्छा ठीक है। कोई आप कोई टारगेटेड कैंपेन भेज रहे हो बेस्ड ऑन सम कंडीशन, जैसे कि पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से भेजना चाहते हो या नहीं पर्टिकुलर? ऐसा एक्चुअली the purpose is to like send it an introduction mail from for the company. So ओके it will be an introduction mail and can we attach our brochure if possible and brochure and introduction mail and both or like भेज सकते हैं attachment? आप भेज सकते हो, आप अटैचमेंट को, लेकिन आपको लिंक करना पड़ेगा। आप लेकिन अपलोड, हाँ अटैचमेंट का लिमिट कुछ है क्या कि मतलब इतने एमबी की फाइल से ज्यादा नहीं होना चाहिए या नहीं, ऐसा ऐसा कोई नहीं है। आप कंटेंट स्टूडियो में जाके आप अपनी अटैचमेंट को अपलोड कर सकते हो और उसके बाद उसको लिंक कर सकते तो आई थिंक अगर अपन भेज रहे प्रॉपरली तो इंट्रोडक्शन मेल के साथ एक कॉर्पोरेट ब्रोशर है हमारा ई ब्रोशर वो भी अटैच करके भेजेगा क्या हो। बोलते हैं? हाँ आप भेज सकते हो इनिशियली। ठीक है तो वो अपन फिर ई ब्रोशर और वो दोनों को अटैच करके वो कैसे अटैच करते हैं वो आप बाद में बताओगे मेल में जब मेल का आएगा। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है तो ये प्रोसेस सर आपका हो गया लिस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है ना। तो नाउ वी आर डन विद आवर लिस्ट मैनेजमेंट। या लास्ट स्टेप है जो सेगमेंटेशन। तो अब हम सेगमेंटेशन पे चलते हैं। सेगमेंटेशन क्या होती है? बेसिकली आपको अगर कोई टारगेटेड कैंपेन करनी है, फ्यूचर में आपके काम आएगी, क्योंकि आप अलग तरह से अलग तो लोगों को कैंपेन भेज सकते हो, और ऑटोमेशन में भी सेगमेंटेशन बहुत क्रूशल होती है। तो हम क्या करेंगे, मैनेज कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स। यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सेगमेंट नाम से भी एक लिंक है, तो लोग सेगमेंट में डायरेक्टली चले जाते हैं, बट पहले हाँ हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ग्रुप कैसे बनाते हैं? हम क्रिएट ग्रुप का बटन दबाएंगे, और यहाँ पे अभी फिलहाल, क्योंकि अभी तो आप सेगमेंटेशन नहीं कर रहे, तो हम एक डिफॉल्ट सेगमेंटेशन बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं लीड सोर्स। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंपोर्टेड लिस्ट डायरेक्ट, लिस्ट इंपोर्टेड, वेबसाइट इंक्वायरी, ऐसे कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो अब क्या होएगा जी, आपने जैसे आप आज अपनी 7,500 कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करोगे, तो वो जो हैं वो आप इस सेगमेंट के अंदर इंपोर्ट करोगे। कल को आपके वेबसाइट को आप कनेक्ट करना चाहते हो, आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये जो फॉर्म है इंक्वायरी फॉर्म, इसको कनेक्ट करना चाहते हो, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे वेबसाइट इंक्वायरी सेगमेंट से। तो ऐसे करके आप एक ही ऑडियंस के अंदर हाँ हजारों सेगमेंट बना सकते हो अलग अलग। हाँ ठीक है सर, तो ये आपका सेगमेंट हो गया। हाँ राइट सर। तो अब हमारा जो है फर्स्ट प्रोसेस हो गया कि हमने लिस्ट को मैनेज कैसे करना था। अब एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे मैं आपको एक कॉन्टैक्ट ऐड करके दिखाऊंगा मैनुअली और एक बल्क। तो पहले मैनुअली हम सिर्फ एक सिंगल कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना ही डाल देता हूँ, टेस्टिंग के लिए आगे काम आएगा। तो मैं अपना कॉन्टैक्ट डाला, अच्छा टाइटल मींस जॉब टाइटल, राइट। आपका जो डीप फोकस है दैट ओनली लाइक यू हैव अ टाई अप विद द मेलचिम्प और व्हाट? सर हम पार्टनर्स हैं, अभी हमें हो गए हैं 6 साल हो गए मेलचिम्प का पार्टनर। सो हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे तो हम 15 साल से ईमेल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, बट 6 साल पहले हमने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट किया था मेलचिम्प के साथ। सो नॉर्थ इंडिया में वी आर द ओनली पार्टनर्स अभी फिलहाल। अच्छा नॉर्थ इंडिया में यू आर द ओनली पार्टनर। ओके ये जो मुझे क्वेश्चन है, So Ankit have a question. yes अंकित जी।
दूसरा क्वेश्चन है कि इसको तो फिर हम एज अ डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, अगर हम टैगलाइंस वगैरह मतलब जैसे आप एज अ डेटाबेस यूज तो कर सकते हो, बस ये है कि आपके पर डेटाबेस पर रिकॉर्ड मेलचिम चार्ज करता है, इसका स्लैब है। जैसे 10,000 के बाद आपकी बिलिंग बढ़ा देगा, भले ही आप ईमेल भेज रहे हो या नहीं भेज रहे, उससे मेलचिम को मतलब नहीं है। नहीं तो हमने जैसे लिस्ट अभी 7,000 की अगर मैंने इंपोर्ट कर दी इसमें, हाँ तो वो 7,000 का रिकॉर्ड तो अपने पास में हो गया। लेकिन मान लो इन केस इन फ्यूचर कुछ नए एक हमारे पास में आते हैं लीड्स, और उनको भी हम ऐड करते जाते हैं तो 10,000 से ऊपर जाते हैं, तो वो उनको काउंट अलग अलग ही करेगा हमेशा। हाँ जी, हाँ जी, आपको आप अगर कोई नया रिकॉर्ड डालोगे तो आप वो उसको काउंट करेगा। यस करेक्ट। हम करेगा तो हमको क्या पुराने वाले उसमें डिलीट करना पड़ेंगे या फिर क्या करना पड़ेगा उसको अगर पुराने वाले आप बेशक अगर आप डिलीट करोगे तो उसकी सारी ईमेल हिस्ट्री भी डिलीट हो जाएगी। ओके। और ये जैसे हम जैसे मल्टीपल टाइम्स उसमें जैसे ब्रोशर वगैरह अटैच वगैरह करते हैं, तो उसमें मेमोरी वगैरह का तो कोई वो नहीं है ना, जैसे आपने कंटेंट वाला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सिर्फ वो रिकॉर्ड्स का चार्ज करता है और बाकी आप जितना भी अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। तो अभी मैं लीड सोर्स में एक नया ग्रुप बना रहा हूँ, इसको हम डाल देते हैं टेस्टिंग ग्रुप। तो टेस्टिंग ग्रुप क्या होता है कि इसमें हम टेस्टिंग ग्रुप में इसलिए बना रहा हूँ कि आप, मैं, अंकित, हम अपने आप को टेस्टर्स के अंदर डाल सकते हैं कि आपको कोई टेस्ट करना है, कल को आप कैंपेन भेज रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो जो भी इनबॉक्स टेस्टिंग होगी हम सिर्फ इसी ग्रुप को टारगेट करेंगे पहले, और इसमें हम सिर्फ इंटरनल 4-5 लोग होंगे। तो एक टेस्टिंग ग्रुप बना दिया। अब मैंने देखो मैंने कॉन्टैक्ट ऐड किया तो वो कॉन्टैक्ट चला गया हमारी लिस्ट में। वो हम कैसे देखेंगे, यहाँ गए व्यू कॉन्टैक्ट में, अब आप देख रहे हो एक कॉन्टैक्ट आ गया और सारी इंफॉर्मेशन उसकी आ गई। आप कॉलम्स की सेटिंग्स चेंज यहाँ पे कर सकते हो। वो जो आप कह रहे थे ना कि सीरियल ऑर्डर में नहीं है, तो वो आप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने टाइटल कर दिया, मिडिल नेम जो है मिडिल नेम को ऊपर करना है तो मैंने मिडिल नेम को ऊपर कर दिया। ये मिडिल नेम आ गया, कंपनी नेम ठीक है, वेब एड्रेस ठीक है, प्रीफिक्स हो गया। अच्छा टाइटल प्रीफिक्स होता है मिस्टर या मिसेज ना, तो प्रीफिक्स को ऊपर कर दिया। इसको सेव कर देते हैं। ये आपके जो अब ये टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गया है। प्रीफिक्स को थोड़ा सा ऊपर करना है, ये ड्रैग नहीं हो रहा, मेरे को लग रहा है ये इसकी वजह से। ये हमने इसको ड्रैग करके इसको प्रॉपरली ऑर्डर में डाल दिया। कमाल है। चलिए इसको बाद में देख लेते हैं ये कुछ बाकी सब हिल रहे हैं, प्रीफिक्स नहीं हिल रहा। अच्छा हिल गया फाइनली। थोड़ा सा टटोलना पड़ता है, सारे सिस्टम्स जो हैं कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनती, थोड़ा सा। अब हमारा क्या है ना सर, मैं खुद कोई क्वालिफाइड ट्रेनर तो हूँ नहीं, मैं खुद भी अपनी एजेंसी चला रहा हूँ। बट क्या है कि इतना टाइम हो गया कैंपेनिंग करते हुए कि मेलचिम्प ने खुद ही जो सीईओ है बेन चेस्टनट, और इनके जो मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं शॉन कुक, और इनके असिस्टेंट ऑफ द सीईओ, ये खुद ही आए थे इंडिया। और तब मेरी मुलाकात हुई, बॉम्बे में हुई थी लीला होटल में। एंड इन्होंने मतलब डिले नहीं किया, एक दिन के अंदर हमने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बट और इन्होंने ये है कहाँ की कंपनी में? ये सर एटलांटा में है, जॉर्जिया में। और सर आप मानोगे नहीं, 6 साल पहले इतने बड़े नहीं थे। मतलब वैसे तो मेलजिम मतलब शुरू से ही बहुत क्वालिटी कंपनी थी, बट 6-7 साल पहले मतलब इतना नहीं था। लेकिन आज ये फोर्ब्स लिस्ट में टॉप 100 में आती है। तो अभी टॉप इसका लाइक इसका सब्सक्रिप्शन ऐसा टर्नओवर टाइप वो सब कितना ह्यूज है? इसका सर अभी 900 मिलियन डॉलर हुआ है, मतलब दे आर वेरी क्लोज टू रीचिंग 1 बिलियन। तो इनका गॉड।
अराउंड 7,000 करोड़। हाँ जी आराम से। इनके बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मतलब मैं खुद ही देख रहा हूँ, मेरे देखते देखते ऐसा कोई भी एक दिन भी जाता नहीं है जब किसी पॉलिटिशियन की कॉल नहीं आती, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, और ज़्यादातर प्रीमियम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट। मतलब मैं खुद देख रहा हूँ लॉकडाउन के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री राम ऑडिटोरियम है मंडी हाउस में दिल्ली का, ये लॉकडाउन में ये क्लाइंट्स के हमारे डील्स क्लोज हुई हैं। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता जब कोई बड़ा, अभी कल ही मेरी बात हुई है आपके हैं कौन सी पिनेकल ऑटोमोबाइल्स, होंडा के सबसे बड़े डीलर्स हैं बंगाल में, उनसे बात हुई इस डील के बारे में। तो मतलब मेलचिम का क्या है कि सर इंडिया के प्रीमियम लोग इसी को यूज़ करते हैं, तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। और सर सही बात ये है, सीक्रेट ऑफ मार्केटिंग यही है कि जो बंदा अपनी ईमेल मार्केटिंग ठीक करता है ना, वो उसकी फिर बाकी सारी मार्केटिंग अपने आप सही हो जाती है। सोशल मीडिया आजकल तो बहुत चढ़ गई है। दैट्स व्हाई अभी हम लोग को अप्रोच इसलिए हम लोग, क्योंकि वी गॉट दिस, ये जो लिस्ट है ना, वी गॉट लाइक वी लिस्ट हमने खरीदी, तो खरीदने के बाद फिर वी वर लाइक कि यार इसको एक एक करके भेजेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एंड वी कांट लेट दिस लिस्ट गो वेस्ट। इसको वेस्ट भी नहीं जाने दे सकते, क्योंकि सब परचेज डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एकदम राइट सोर्सिंग का पर्सन है उस कंपनी का। हाँ तो और मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मैं इसलिए माटा जी से शेयर किया था कि अपन कुछ भी हो जाए वी हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, बट वी कांट गो दिस वेस्ट लिस्ट वेस्ट, क्योंकि आप सोचो वरना 7,000 लोगों को भेजने में कितना टाइम लग जाएगा। अगर दिन के 100 ईमेल भी हम लोग ऐसे इंडिविजुअली करने लग जाए, हाँ जी, तो 3 महीने तो एक बार ट्रिगर लगे, 3 महीने लग जाएंगे एक ट्रिगर हाँ करने। हाँ। नहीं, आपको इसमें तो ये एक ऐसी चीज़ है, इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। देखिए ना, अब आपके अगर मान लीजिए आपके 7,500 कॉन्टैक्ट्स हैं ना, तो 7,500 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये तो हो गई आपकी डिलीवरीज। भाई 7.5 है तो 7.5 में मान लो 10-15 भी अगर प्रोस्पेक्टिव निकल गए। हाँ, आपकी देखिए ओपन होती है 20%, तो 20% हो गया आपका F2 F15 इंटू 20%, ये आपके आपके हो जाएंगे इतने 1,500 ओपन हो जाएंगे। और क्लिक्स, अब हर बंदा क्या है कि जितने, अगर 1,500 लोगों ने खोला तो 10% क्लिक करते ही करते हैं, तो आपका हो गया F16 इंटू 10%, आपके F16 इंटू 10, आपके 150 लोगों ने तो क्लिक करा ही करा है। और आपकी जो है 4% जो है ऑर्डर्स या जो सेल्स होती है वो 4% हो जाती है क्लिक से, तो आपका हो गया आपका मोटा मोटा F17 इंटू 4% हो गया, कितना हो गया इंटू 4, नहीं 0.4 करना पड़ेगा ना, हाँ 4 हो गया आपका, हाँ 0.4, तो आपके 6, नहीं गलत तो नहीं किया मैंने, 45 7.5 का 1,500 ने खोला, 1,500 में से 150 ने क्लिक किया, 150 में 150 का 4%, हाँ यही तो हुआ, 6 हो जाएगी आपकी। तो मोटा मोटा मतलब सब कुछ तो निकलता है ना नतीजा। भाई मतलब अगर अपन को, मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को इसमें से 10 भी मिल गए, 5 या 10 भी मिल गए, 10 अच्छे बड़े बायर्स कुछ मिल गए, तो अपना तो काम बन जाएगा ना, 10 से नया बिजनेस शुरू होगा। यस करेक्ट, तो ये चीज़ है सर, ये चीज़ हम इतने सालों से लोगों को यही समझा रहे हैं कि मेल से रिजल्ट आता ही आता है, ये नंबर्स हमारे सामने, हम तो देखते हैं रोज। बट आपको इसमें सक्सेस रेट, आपने जितनों के साथ काम किया है उसमें से कितनों का सक्सेस रेट क्या है, मतलब कितना परसेंट? सर मेरे जो जो मैंने देखा है, जो हाई वैल्यू लोग हैं उनका सक्सेस रेट तो 100% होता है। मतलब अगर जैसे अब हमारे एक बायर है, वो MRI स्कैनर बेचता है, उसका एक स्कैनर 2.5 करोड़ का है, तो उसको 1,000 में से अगर एक का भी इंक्वायरी आ जाती है तो ही इज़ वेरी हैप्पी। तो एक तो हाई वैल्यू में सक्सेस रेट इज़ वेरी गुड, सक्सेस रेट इज़ गुड। जो जो ई कॉमर्स या लो वैल्यू प्रोडक्ट्स है, ई कॉमर्स या लो वैल्यू प्रोडक्ट्स, उसमें इतना इज नॉट सो गुड। बट नॉट सो गुड में भी एक दो तो मिलते होंगे ना? हाँ एक दो क्या सर, इसमें बल्कि परसेंटेज वाइज तो इज वेरी गुड, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि मतलब मार्जिन कम होता है। अब कोई बंदा अगर 50 रुपए की चीज बेच रहा है, उसका प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपए है, तो वो बोलता है यार रॉबी मैंने इतना खर्चा किया, मैंने इस महीने मेलचिम को 10,000 रुपए दिए और मेरी सेल सिर्फ लाख रुपए हुई, और लाख रुपए में मेरा मेरा प्रॉफिट जो था वो सिर्फ 20,000 रुपए था, तो मैंने 10,000 रुपए खर्चा किया और 20,000 रुपए कमाया, तो मेरे को
मेरे को मजा नहीं आ रहा। तो मेरे पास बहुत से कस्टमर्स जो हैं वो बोलते हैं कि वो ना डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि ये चीज जो है ये लॉन्ग टर्म काम आती है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट सेल्स करनी है, बट कस्टमर के आप माइंड में रहते हो। अगर उसको आप रेगुलरली महीने में 2-3 ईमेल भेज रहे हो तो वो कस्टमर आज नहीं तो कल आपका बनता ही बनता है। तो जो लोग ये चीज समझ गए हैं, बहुत से ई कॉमर्स कंपनीज हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वो छोड़ती ही नहीं है मेलचिम को। और उससे क्या है, फिर उनका बिजनेस एक्सपोनेंशियल जब होता है तो एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जब आपका वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ता है, लोग इंक्वायरियां भेजते हैं, फटाफट मेलचिम उसको ईमेल भेज देता है, तो उसका जो लीड मटेरियलाइजेशन है वो बहुत इंस्टेंट है। अगर फ्रेश लीड, या कंप्लीट या सॉरी, हाँ जी, बट अगर आपका पॉइंट एकदम वैलिड है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट तो है। बिकॉज अभी क्या होता है, जनरली व्हाट आई नो कि बाकी सब लोग इनफैक्ट पूरा मतलब मेजोरिटी पीपल और मार्केटिंग पीपल क्या करते हैं कि लीड ढूंढते हैं। जैसे सपोज हम लोग भी, मैं भी पहले यही करता था कि लाइक उनकी वेबसाइट्स पे जाना और उनकी जो वेबसाइट पे ईमेल आईडी होता है इन्फो वाला, हाँ जी, अब उस पे इंक्वायरी भेजते हैं हम लोग, लेकिन अब वो इन्फो वाली आईडी उस कंपनी देख रही है नहीं देख रही है, हाँ फिर जी, तो वो क्या रहता है, वो बड़ा प्रॉब्लम रहता है उसमें कि वहां से फीडबैक नहीं आता। ये वाली जो लिस्ट है ये सीधा राइट पर्सन को जाएगी, राइट पर्सन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना काम सीधा राइट पर्सन तक तो जाए। वो कॉन्टैक्ट मतलब कम्युनिकेशन अगर सही पर्सन को होगा तो ही बिजनेस होगा, अगर सही पर्सन को ही नहीं जा रही है वो मेल तो वो कुछ बिल्कुल काम सही, की नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। सो यस, सर ये हो गया आपका इंपोर्ट प्रोसेस। अब मैं एक डेमो फाइल एक इंपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। इससे क्या है, सिंपल। अब आपको अगर इंपोर्ट करना है तो दो तरीके हैं। आप एक्सेल फाइल डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। उसका कोई फॉर्मेट? उसका फॉर्मेट मैं आपको भेज रहा हूँ। उसका बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है, आप मैनेज कॉन्टैक्ट में जाके एक्सपोर्ट ऑडियंस कर दो। उससे क्या होएगा, ये अपने आप जो कॉन्टैक्ट्स को फॉर्मेट एक्सपोर्ट भेजेगा ना जब, तो आप उसी को यूज़ कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ ऑडियंस में सबसे पहले। अब मुझे इंपोर्ट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, मैं मैनेज कॉन्टैक्ट्स में जाके व्यू कॉन्टैक्ट करूँगा, और ये ऊपर आ गया मेरे एक्सपोर्ट सेगमेंट। मैं एक्सपोर्ट सेगमेंट का बटन दबाऊंगा और ये एक कॉन्टैक्ट जो है ये एक्सपोर्ट हो गया। अब मैंने इसको CSV में सेव कर दिया, ये मेरे पास फाइल आ गई। तो अब आप देख रहे हो ये मेरे पास फर्स्ट क्लास फाइल आ गई, एक्सेल फाइल। अब मैं इसी को ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं इसी को एक्सेल में कन्वर्ट करके, अब इसी में मैं एक नया रिकॉर्ड डाल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक नया डाल दिया, dfocusweb@gmail.com। मेरा भी नाम हर्ष है वैसे। ओ, मेरा जो 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 मेरा सिख नेम है वो हर्ष है एक्चुअली। अरे तो वाह, मैं, हाँ जी हाँ जी, हर्षिंदर है मतलब बेसिकली, बट सारे घर वाले हर्ष ही बुलाते हैं मुझे भी। चलो बढ़िया। हर्ष मीन्स हैप्पी, तो खुश हर्ष रहते मीन्स हो कि नहीं हर्ष। आप? यस, करेक्ट करेक्ट। तो ये अब हमने डिटेल्स डाल दी। अब हम यहाँ से, अब ये मेलचिम जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो ये मेलचिम अपनी इंटरनल डेटा देता है यहाँ से, ये आप बेशक हटा सकते हो। ओके, कि जैसे टारगेटेड डेटा, जैसे वो कहाँ का था, कौन से टाइम जोन का, वो अपने आप डिटेक्ट करता है, जो वो डाल देता है। अब मैं इसको सेव एज करता हूँ और इसको CSV में दोबारा सेव कर देता हूँ। इसका नाम रखते हैं import1। तो ये याद रहेगा, ये पहली इंपोर्ट फाइल थी। अब बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इंपोर्ट करने के लिए। अब आप देख रहे हो मैंने बस अभी डेमो के लिए सिर्फ एक फाइल बनाई थी। तो मैं ऑडियंस में गया दोबारा अपने, मेरा तो आ गया। हाँ, सॉरी। ऑडियंस में जाके वेरी सिंपल प्रोसेस। एक मैंने एक रिकॉर्ड बनाया आपके लिए डेमो के लिए। मैं इंपोर्ट कॉन्टैक्ट दबाता हूँ। ये पूछेगा मुझे फाइल अपलोड करनी है कि कॉपी पेस्ट करना है। मैं फाइल अपलोड करूँगा, ब्राउज करूँगा। अब क्योंकि मैंने जो अपना रिकॉर्ड है वो बिल्कुल मेल चिम्प के टेम्पलेट में बनाया है, मुझे कुछ भी नहीं करना, ये अपने आप फील्ड मैप कर देगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि किसी ग्रुप में डालना है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। यहाँ पे कंटिन्यू टू टैग कीजिए, कंटिन्यू टू मैच कीजिए, अपने आप ये जो है आपका मैपिंग हो गई है। यहाँ पे वन कॉन्टैक्ट वॉज रिकग्नाइज्ड इन द फाइल।
अब ये देख रहे हो इसने अपने आप टाइटल सारा कुछ मैपिंग कर दी क्योंकि एग्जैक्ट स्पेलिंग थी। अब ये कुछ कुछ चीज़ें जो मैप नहीं हुई हैं, लीड सोर्स मैप नहीं हुई। लीड सोर्स तो हम ये बताएंगे कि लीड सोर्स हमारा ग्रुप है, कंफर्म हो गया। अब ये लीड सोर्स में चला जाएगा। एक चीज़ और मैप नहीं हुई थी, वो था फुल एड्रेस। फुल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको बेशक रिमूव कर सकते हैं, लेट इट बी। अब मैं फाइनलाइज इंपोर्ट करूंगा तो अब आप देखोगे कि ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब मैं एग्जिट करके वेरीफाई करता हूँ। अब मेरी ऑडियंस फील्ड, ऑडियंस लिस्ट जो है वो एक की जगह 2 हो जानी चाहिए। इसको रिफ्रेश करते हैं। ओहो, मैंने कहीं ईमेल सेम रिकॉर्ड ही तो नहीं इंपोर्ट कर दिया। सेकेंड देखनी चाहिए। फोकस इंपोर्ट नहीं हुआ, कुछ गलती हुई है। आई थिंक लेट अस जस्ट चेक। कई बार रिफ्रेशिंग में भी टाइम लगता है। नहीं, कोई प्रॉब्लम हुई है तो दोबारा करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, अपलोड अ फाइल, ब्राउज। हमने अपनी फाइल स्पेसिफाई करी, ऑर्गेनाइज, कंटिन्यू टू टैग, कंटिन्यू टू मैच। अब ये कह रहा है ईमेल, वन कॉन्टैक्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड फाइल, वेरी गुड। टाइटल ले लिया इसने, नेम सारी डिटेल्स ले ली, एड्रेस की हमें ज़रूरत नहीं है और ये सारा करेक्ट है आपका। ठीक है। लीड, अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अपन जैसे मान लो एक महीने में अगर 7,500 एक को 4 बार ट्रिगर करते हैं, हर वीक में एक बार, ओके। तो कितना हो गया? 15 15 30,000 हाँ महीने का। हाँ जी, हाँ जी। तो हाउ व्हाट विल बी द अराउंड पैकेज ऑफ दिस? आपका 30,000 का कुछ बैठेगा, आपका बैठ जाता है कुछ अराउंड $150, नहीं 150 भी नहीं, आपका बैठेगा कुछ $250 के करीब। अच्छा, $250। हाँ जी, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ अभी आपको। अब मैंने कंप्लीट इंपोर्ट का बटन दबाया, वो मैं भूल गया था दबाना। अब आप देख रहे हो योर इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल। अब मैं देखता हूँ, अब एक की जगह 2 हो जाने चाहिए। तो ये रिकॉर्ड इंपोर्ट हो गया और ये यहाँ पे दिखा रहा है 2 सब्सक्राइबर। अब मैं इस नंबर पे क्लिक करूंगा तो मुझे अपनी पूरी लिस्ट दिख जाएगी। ये मेरी पूरी लिस्ट आ गई। अब आप देख रहे हो मैं इसको टारगेटेड कैंपेन भेजने के लिए मेरे को क्या करना है, बस मेरे को ग्रुप्स में जाना है और मैं देख सकता हूँ कि अब मेरे ग्रुप्स में एक कॉन्टैक्ट जो है, ये दोनों कॉन्टैक्ट वेबसाइट इंक्वायरी में चले गए। हाँ। अब मुझे एक दोनों को टेस्टिंग, अब इनका ग्रुप बदलना है क्योंकि ये इंटरनल है। तो मैं इनको क्या करूँगा, आई विल जस्ट क्लिक ऑन देम। अब रिकॉर्ड कैसे, इंडिविजुअल रिकॉर्ड कैसे देखते हैं कि उसके नाम पे क्लिक किया तो उसकी पूरी इंडिविजुअल प्रोफाइल आ जाएगी। मैंने एडिट किया, यहाँ पे मैं इसकी डिटेल्स चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसका सेगमेंट बदलना है तो मैं बस यहाँ पे जाके ग्रुप में जाके इसका सेगमेंट वेबसाइट इंक्वायरी की जगह टेस्टर में डाल दूँ। और ये जो इंडिविजुअल पेज है इसमें आप उसकी एक्टिविटी भी देख सकते हो कि ये रिकॉर्ड कब आया, इसको कब ईमेल गई, इसने क्या जवाब दिया, इसने क्या खोला, क्या क्लिक किया, सब कुछ आ जाता है। ये देखो इसने फोटो भी अपने आप निकाल ली। तो ये आपका सेव हो गया। ये आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया ऑडियंस मैनेजमेंट का। तो अभी हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। हमने वी हैव कंप्लीटेड आवर सेगमेंटेशन प्रोसेस, लिस्ट मैनेज हो गई। अब हमें मान लीजिए हमें टेस्ट कैंपेन भेजनी है, तो वो कैसे बनानी है। अब हम चौथे पॉइंट पे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ईमेल डिजाइन। ईमेल डिजाइन के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज करनी है, वी जस्ट हैव टू गो टू कैंपेन्स एंड ईमेल टेम्पलेट्स। कैंपेन बनाने से पहले हमें टेम्पलेट समझना बहुत जरूरी है। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट एक पैटर्न होता है। आपने एक बार पैटर्न बना दिया और उस पैटर्न में अपनी ब्रांडिंग कर दी, अपने हिसाब से पैटर्न बना दिया, फिर आप क्या कर सकते हो, आप आपको अगर महीने में 4 कैंपेन करनी है, साल में आपको 50 कैंपेन करनी है, आप एक पैटर्न को ही बार बार यूज कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो हर कैंपेन के हिसाब से। तो पैटर्न बनाने के लिए क्या है, ये आपको ऑलरेडी रेडीमेड पैटर्न्स दे रहा है, इनको ये टेम्पलेट्स बुलाता है। आपको ये टेम्पलेट सिलेक्ट करो अपने हिसाब से। What I suggest all my customers is कि जो आपका बेसिक पैटर्न है, ये पहला वाला, आप इससे शुरू करो।
उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, बट जो बेसिक पैटर्न है ये 1 कॉलम, इसी को मॉडिफाई किया जा सकता है और इसी से बाकी सारे बनते हैं। तो आप बेशक आप पहले से शुरू कर सकते हो, जब आपको एडवांस फंक्शनैलिटी समझ में आने लगेगी तो आप इसी को मॉडिफाई करके खेल सकते हो। ये आपका पैटर्न आ गया। अब ईमेल टेम्पलेट जो है, जो आप ईमेल भेजते हो, आप कोई भी ईमेल देखोगे जो आपको मेलचिम्प से आ रही है या किसी भी वर्ल्ड के प्रोग्राम से आती है, कोई भी आप ईमेल अगर खोलोगे, जैसे मैं अपने डैशबोर्ड में चलता हूँ इनबॉक्स में, ये एक ईमेल है, देखो ये एक ईमेल है, ये एक ईमेल है, ये इन सब ईमेल्स में एक पैटर्न होता है जो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। एक होता है सबसे ऊपर प्री हेडर, फिर ये होता है हेडर, फिर होती है बॉडी, फिर होती है फाइनली फुटर। तो ये फुटर हो गया लास्ट। तो ये जो है मेलचिम्प उसी तरीके से एक पैटर्न को बनाता है। तो उसको समझने के लिए मैं स्टाइल में जाता हूँ। आप ये देखिए, ये आपके टेम्पलेट की एनाटॉमी है। आप क्या कर सकते हो, प्री हेडर है, जैसे प्री हेडर का आपने कलर चेंज कर दिया, ये आपका प्री हेडर हो गया। ये आपका प्री हेडर का कलर आपने छोटा कर दिया थोड़ा फॉन्ट, और इसका कलर डार्क कर दिया, और आपने लिंक का कलर अलग से, ये यहाँ पे सेटिंग्स आपने पैटर्न बना दिया, फर्स्ट क्लास। उसके बाद आता है आपका हेडर एरिया। हेडर एरिया ये होता है, हेडर एरिया जैसे कि ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा, ये आपका हेडर सेक्शन। यहाँ पे आप अपना लोगो, ऑलरेडी एक जगह है लोगो डालने की, आप लोगो डाल सकते हो, जो उसके क्वेश्चन है। या आपने एक अपना लोगो डाल दिया। अंकित का एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इसमें कोई सा अगर हमारे पास में जो वेबसाइट है डायरेक्टली हम अगर चाहें तो वेबसाइट के जो डिजिटल प्रिंट्स रखे हैं वो हम डाल सकते हैं इसमें टेम्पलेट के जैसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपके जो वेबसाइट की फोटोज है, जैसे मैं अभी एक लोगो डालता हूँ, दो तीन चीजें आपको डाल के दिखाता हूँ। ये आपका है, जैसे एक आपने लोगो का फाइल बना दी, आप लोगो में गए, रिप्लेस का बटन दबाया, और आपने अपना लोगो कोड कर दिया। ये जैसे कि आपने एक ऑलरेडी कंटेंट, अब देख रहे हो ये अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसका जो हेडर है वो ग्रे है, तो हम हेडर में जाएंगे और इसको भी वाइट कर देंगे ताकि थोड़ा क्लीन लगना शुरू हो जाए। ये आपका, अब जनरली क्या प्रेफर करते हैं कुछ लोग, लोगों को लेफ्ट में प्रेफर करते हैं, तो आप स्टाइल में जाके ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। आपने लेफ्ट में कर दिया ऐसे। अब आपने जो अपनी ईमेल बनानी शुरू करनी है, जैसे आपने आपने एक ईमेल बनानी है, डियर, मुझे ईमेल बनानी है डियर अंकित, तो मैं करूँगा डियर एफ नेम। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके मर्ज टैग काम। इसीलिए हमने जो फर्स्ट स्टेप थी वो बहुत ध्यान से करी थी, ताकि हमें सारे मर्ज टैग पता हों। आई एम, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इट इज़ अ ग्रेट ऑनर टू गेट इंक्वायरी फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हमने कंपनी का नाम करने के लिए हमने कर दिया सिंपल मर्ज टैग कंपनी 5 स्टार। और यहाँ पे हम एफ नेम की जगह स्पेस, अगर हमें लास्ट नेम भी देना है, मिडिल नेम भी देना है, तो हम ऐसे करके एम नेम कर देंगे। और यहाँ पे हमने एल नेम भी कर दिया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा बारीकी से करा जाए तो बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आई वॉज हैविंग अ लुक एट दिस वेबसाइट, यहाँ पे मैंने इस मर्ज टैग डाल दिया, जैसे एंड आई फाउंड and found the information interesting. I can, I look forward to
में दोबारा कंपनी का नाम। अब ये एक हाईली पर्सनलाइज्ड ईमेल बन गई है, तो जिसको भी मिलेगी वो बोलेगा अरे वाह यार, ये तो इसने मेरे बारे में सब कुछ जान के मेरे को ईमेल भेजी है। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। ईमेल जितनी ज़्यादा पर्सनलाइज होती है, लोग उतना ज़्यादा आपके काम को सीरियसली लेते हैं। तो आपने अगर ईमेल में पर्सनलाइजेशन डाली, उसकी डिटेल ईमेल में ही डाल दी। हमारे पास तो डेटा है, बट लेकिन अगर हम उसकी डेटा को उसी को दिखाते हैं ना, तो उसको लगता है अरे वाह यार, इसको तो मेरे बारे में काफी कुछ पता है ऑलरेडी। बट इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी। इसमें एक्सेल में जैसे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल है, हाँ जी। तो ऐसा अपन आपने जो अभी दिखाया वैसा अपन सेट कर सकते हैं ना कि उसको डियर उसके नेम से लिखा हुआ पूरी जाए। हाँ वही किया है अभी, देखिए ये जो है ये एफ नेम, एल नेम, हाँ, एंड फुल जो नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो ये अपन ऐसा फॉर्मेट सेट करेंगे तो ही विल पिक अप एग्जैक्टली द सेम नेम फ्रॉम दैट ईमेल आईडी, और वो उसको ऐसे उसके नेम जी के। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। ये बढ़िया हो जाएगा यार, ये तो बहुत इजी हो जाएगा काम। ये आपका जो है, ये आपका सेटअप हो गया सारा। ये अपने लिए बहुत अच्छा जाएगा, उसका नेम से ही जाएगी, तो वो नेम की जाएगी तो वो पढ़ेगा भी कि यार मेरे नेम पे आई है डियर दिस। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग सीरियसली लेते हैं जब वो देखते हैं ना पर्सनलाइज। बल्कि मैं तो कई बार और भी डिटेल्स डालता हूँ, जैसे मैंने बीच बीच में ये इन्फॉर्मेशन डाली है। अभी आप देखते हैं जब ये ईमेल बन के आएगी तो ये बहुत पर्सनलाइज लगेगी। तो मैं थोड़ा सा आपके कंपनी के ब्रांडिंग के हिसाब से बना रहा हूँ, थोड़ा सा और इसको कलर वलर आपके ब्रांड के हिसाब से कर दिए। फुटर, तो ये सब मेल चिम पे ही बन जाती है पूरी मेल। ये पूरी मेल आपकी बन गई देखिए। और फिर मैंने ये सोशल मीडिया के लिंक्स मैं डाल दूंगा बाद में। लिंक्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, कंटेंट में जाके ट्विटर के कोई नया ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड करके कोई नया सोशल मीडिया भी डाल सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको कोई ओके। और डालना है, जैसे मान लो आपका लिंक्डइन है तो आप लिंक्डइन डाल सकते हो। आप स्टाइलिंग में आई जनरली जो सबसे प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लगता है वो सिंगल सॉलिड कलर लगता है ऐसे। आपने सॉलिड सिंगल कलर कर दिया। फुटर में आप थोड़ा सा कलर, फुटर छोटा भी बना सकते हो फॉन्ट साइज, ताकि ज़्यादा वो बॉडी से हट के लगे और वो इतना ज़्यादा वो ओवर पावरिंग ना लगे बंदे को। तो मैंने फुटर का थोड़ा सा कलर चेंज कर दिए। ये आपके फुटर हो गया। अब आप देख रहे हो जो हमने फर्स्ट स्टेप में सारा काम किया था वही अभी हमें फायदा दे रहा है। जैसे मर्ज टैग्स यहाँ पे आ गए, जो हमने अकाउंट में आपकी इंफॉर्मेशन डाली थी वो अब यहाँ पे आई थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने टेम्पलेट को भेजने के लिए ये तैयार है। लेकिन देखने से पहले हम इसको प्रीव्यू जरूर करेंगे हमेशा। एक बात याद रखना कि एक बार सेंड का बटन दबा दिया तो वो वापस नहीं होगा। एक बार ईमेल चली गई तो चली गई। वेबसाइट में अगर गलती होती है तो उसको ठीक करा जा सकता है, लेकिन ईमेल अगर गलत चली गई तो चली गई। तो सेंड करने से पहले आप क्या कर सकते हो, आप प्रीव्यू एंड टेस्ट में जाके पहले एक प्रीव्यू कर लो। मेलचिम के अंदर ही मेलचिम बहुत अच्छा प्रीव्यू बनाता है। आपको वो दिखाएगा ये डेस्कटॉप में कैसी लगेगी, ये मोबाइल में कैसी लगेगी और इनबॉक्स में कैसी लगेगी, ये आपको दिखा देगा। ये स्टैंडर्ड अकाउंट में बताते लेकिन हैं अब तो। इसमें नेम, जैसे डियर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये अपन ने करा है, तो वो हाँ, आ, वो का भी एक मैं, एग्जाम्पल। वो मैं आपको बताता हूँ वो इसका प्रीव्यू कैसे किया जा सकता है। तो जब मैं सेव कर देता हूँ, अभी मैंने टेम्पलेट बनाया है, अब इसका नाम रख देते हैं ब्रांडेड टेम्पलेट। फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट ब्रांडेड टेम्पलेट, या ट्रायल लिख देते हैं, ट्रायल। ऑब्वियसली अभी ये तो मतलब बहुत ही कच्चा टेम्पलेट है, इसको और मतलब जब आप अपने हिसाब से बनाओगे, अपनी ड्राइंग, अपना आर्टवर्क डालोगे। अब इसको मैं क्रिएट कैंपेन दबाता हूँ, टेम्पलेट बन गया। अब मैं लास्ट फाइनल स्टेप में जा रहा हूँ कैंपेन को शेड्यूल करने की। कैंपेन में हमने नाम रखा माय टेस्ट ट्रायल कैंपेन, दे देते हैं इसका नाम, ट्रायल कैंपेन टू इंटरनल टेस्टर्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने कैंपेन भेजेंगे सिर्फ टेस्टर्स को। तो हम यहाँ पे ग्रुप और न्यू सेगमेंट करेंगे और इसको बोलेंगे कि सिर्फ इस ग्रुप को भेजो। हम यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, लीड सोर्स इज वन ऑफ टेस्टर्स। और यहाँ पे पर्सनलाइज टू फील्ड में हम हमेशा एफ नेम सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। ये आपका सेटअप हो गया। फ्रॉम नेम ऑटोमेटिकली आ गया तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट में कर दिया हाय एफ नेम हाउ आर यू क्वेश्चन। अब मैंने सेव कर दिया इसको। अब क्या होगा, अब मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ। टेस्ट करने के लिए पहले मैं एडिट डिजाइन में जाऊंगा,
क्योंकि अब मैंने अपने ऑडियंस को अपने टेम्पलेट से कनेक्ट जब कर देते हो तो उसी चीज को कैंपेन बुलाते हैं, क्योंकि अब ये भेजने के लिए तैयार हो गई है। अब मेलचिम को पता है ये किसको भेजनी है, ऑडियंस कौन है जिसको जाएगी, और ये टेम्पलेट कौन सा है, डिजाइन कौन सा है जो जाएगा। अब मैं प्रीव्यू में जाऊंगा, इंटर प्रीव्यू मोड करूंगा, तो अब मेरे पास एक लग्जरी है, अब मैं यहीं पे मर्ज टैग को देख सकता हूँ, ये स्विच दबा के। तो मैंने स्विच किया, इनेबल लाइव मर्ज टैग, तो आप देख रहे हो कि अपने आप मेरी डिटेल आ गई, डियर हरशिंदर सिंह, देख रहे हो यहाँ पे मैंने गलती करी तो ये आया नहीं, इसीलिए प्रीव्यू करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए सारी बाकी इन्फॉर्मेशन आ गई। इट इज अ ग्रेट ऑनर टू गेट इंक्वायरी फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन डी फोकस। आई वाज हैविंग अ लुक एट दिस वेबसाइट, वेबसाइट आ गया, एंड आई फाउंड द इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट, ये सब तो इंग्लिश थोड़ी गलती गलत है, प्लीज गेट इन टच टू नो मोर, नो की स्पेलिंग गलत, ये सब ठीक करेंगे। तो ये हमने प्रीव्यू में पता लगाया काफी सारी गलतियां हैं, इसको हम ठीक कर देंगे। यहाँ पे हमने एल नेम ठीक करना था, गेट ऑनर वेबसाइट, आई फाउंड इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग कर दिया, और आई लुक फॉरवर्ड टू टॉक, प्लीज गेट इन टच टू नो की स्पेलिंग ठीक कर दी। अब हम एक बार फाइनल टेस्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे बाय नाउ की जगह रिक्वेस्ट। ये आपका प्रोसेस तैयार हो गया। अब मैं प्रीव्यू करूंगा इसको और दोबारा ये स्विच दबाऊंगा। अब आप देख रहे हो परफेक्ट कर दिया इसने, डियर हरशिंदर सिंह कोहली, इट वाज अ ग्रेट, ये आ गया फोकस और ये रिक्वेस्ट, ये सारा आपका। अब आप देख रहे हो कि नीचे जो जिब्रिश लग रहा था ये सारा, ये इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप ये चीज डिलीट कर सकते हो, और आप ये जो है अगर एड्रेस ये वाली लाइन भी डिलीट कर सकते हो और ये वाली लाइन भी डिलीट कर सकते हो। ये जो है ये मेलचिम्प का जो लोगो होता है, जो रिवॉर्ड्स जो हमने सबसे पहले बात करी थी, ये उसके लिए। जब आपका प्रीमियम अकाउंट होगा तो आप ये भी रिमूव कर सकते हो, तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, बट ये बाय डिफॉल्ट। प्रीमियम प्लान है कि नहीं? हाँ जी, अभी अपना प्रीमियम प्लान है कि नहीं? अभी तो आई थिंक फ्री अकाउंट है, देखना पड़ेगा मेरे को। अच्छा। तो अभी हमने इसको स्विच दबाया, अब देखो आप ये सारा आपका फाइनल हो गया, ये सारा मर्ज टैग अपने आप ऑटोमेटिकली बन गए, नीचे आपकी सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ रही है, ये उसी से आ रही है। ये आपका देखिए एड्रेस अपने आप आ गया जो हमने पहले भरा था, तो और आपको इसमें बेसिक। अटैचमेंट ऐड करना हो तो? अब अटैचमेंट ऐड करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपने ऑलरेडी एक अटैचमेंट ऐड करी हुई थी, तो उसको हम क्या करेंगे, हम जाएंगे आपके एक साथ में एक टैब खोल देंगे कंटेंट स्टूडियो का, और कंटेंट स्टूडियो में आपकी माय फाइल्स क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो आपकी एक ऑलरेडी एक फाइल है, तो हम क्या करेंगे, व्यू डिटेल्स करेंगे। अब जैसे मान लो ये एक पीडीएफ फाइल है, तो मैं कॉपी यूआरएल दबाऊंगा और यहाँ पे मैं इस बटन पे लिंक डाल दूंगा, और इसमें कर सकता हूँ व्यू पोर्टफोलियो या व्यू ब्रोशर, और सेव कर दिया, दैट्स इट। अब मैं एक कैंपेन इसको भेज ही देता हूँ, तो देखते हैं कैसी लगेगी फाइनली। तो कंटिन्यू किया और अब मैंने सेंड का बटन दबा दिया। अब आप स्केड्यूलिंग का पूछ रहे थे, तो स्केड्यूल कैसे हो सकती है, मैं चाहता हूँ कि कल सुबह जाए कैंपेन, तो मैं इसको कल सुबह 10 बजे की भी कर सकता हूँ। यहाँ पे 10 बजे कर दिया, मान लो मैंने 10 बजे, और डेट दे दी कल की 30 तारीख। तो ये सारे ईमेल्स को अब उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग जाएगी? हाँ, ये इंडिया टाइम के हिसाब से जाएगी। इंडिया की वो नहीं, अपन जैसे लिस्ट भेजेंगे तो वो तो आपने कल बताया था ना, उनके अगर कोई ऑस्ट्रेलिया की कोई यूएस की है तो ऑस्ट्रेलिया वालों को उनके 10 बजे के हिसाब से जाएगी। हाँ, तो फिर उसके लिए आपको ये फीचर यूज करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था, टाइम रैपिंग। तो टाइम रैपिंग भी वो भी, ये जैसे ये दो ऑप्शन है, एक तीसरा ऑप्शन नीचे आपको दिखेगा टाइम रैपिंग का, आप टाइम रैप क्लिक करोगे और वो अपने आप ही टाइम डिटरमिन करेगा। तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस वो जैसे ही आप प्रीमियम अकाउंट जब भी अपग्रेड करोगे तो वो आपको फीचर यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, एक तो बार ये, अपन अकाउंट देख लेंगे अपना कौन सा है अभी। हाँ अभी देख लेते हैं, मैं ये कैंपेन बस भेज के उसके बाद आपको दिखाया, ये कैंसिल कर देते हैं और बस मैं डायरेक्ट सेंड का बटन दबा देता हूँ अभी। तो ये कैंपेन मेरी चली गई, ये आप देख रहे हो, ये मैंने कैंपेन भेज दी फर्स्ट क्लास। अब आप अकाउंट्स में जाके एक बार देख लो आपका अकाउंट जो है, सेम प्रोसेस जो समझाए थे, जैसे कि हमने कि बिलिंग में जाके फिर मंथली प्लान तो क्रेडिट में जाएंगे, और यहाँ पे जो है आपका, ये आपके जो प्लान्स और प्राइसिंग आ जाती है। तो आपका अभी जो है एस्टिमेटेड प्लान आपका ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्लान है, अच्छा ठीक है, तो आपको करना है, आपको स्टैंडर्ड
आपका नहीं, आपका ठीक है, आपको टाइम रैप दिखना चाहिए फीचर। मेरे ख्याल से हमारा शायद अभी 500 कॉन्टैक्ट्स का लिया हुआ है, वो शायद बेसिक प्लान है आई थिंक। हाँ, बट इसमें आपको प्रीमियम फीचर्स मिलने चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड में आते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ फीचर कहाँ पे है। स्केड्यूल, सर हो सकता है टाइम रैप फीचर इसीलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेलचिम के पास अभी डेटा नहीं है। ऑब्वियसली जब आपके पास डेटा, जब आपके पास सारी लिस्ट होगी तो मेलचिम आपको बता पाएगा कि टाइम रैप फीचर अवेलेबल है कि नहीं है। तो अभी तो क्योंकि हमारे पास दो ही रिकॉर्ड है ना, इसलिए टाइम रैप बता ही नहीं पा रहा। अच्छा। क्योंकि जब तक डेटा नहीं होगी मेलचिम कैसे आपको, तो ये काफ़ी मतलब इंट्यूटिव प्रोग्राम है। आपको जो है टाइम रैप फीचर अपने आप दिखने लगेगा जब मेलचिम के पास डेटा। बट अभी आपने स्केड्यूलिंग कर सकते हो। टाइम तो आपको पता है कि अब आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सेट किया है। तो अगर आपको अमेरिका में भेजना है तो आप शाम को भेज सकते हो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। लेकिन वो क्या है, उसमें वो लिस्ट में अब इतना बहुत सारी कंट्री, सब जगह से ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल है। हाँ, कोई बात नहीं। तो वो जो है वो फीचर आपको अवेलेबल हो जाएगा जब आप डेटा इंपोर्ट करोगे। जैसे मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ तो ये फीचर अवेलेबल हो जाता है। हो सकता है पहली कैंपेन के लिए ये फीचर अवेलेबल ना हो क्योंकि मेलजिम को पता भी तो होना चाहिए। एक बार वो शायद जब तक भेजेगा नहीं वो ट्रैक नहीं कर पाता। जैसे अगर ये फीचर है, देखिए सेंड, ये कैंपेन है एक बनाई हुई है, आज करनी है इसको, तो यहाँ पे ये फीचर आ जाता है ऐड रेसिपिएंट। मैंने रेसिपिएंट बना दिए। अब मैं इसको स्केड्यूल करता हूँ तो देख रहे हो ये फीचर आ गया, सेंड विद टाइम है, डिलीवर योर कैंपेन अकॉर्डिंग टू द रिसिपिएंट्स टाइम है। अबाउट टाइम रैप, टाइम रैप कैंपेन कांट बी एडिटेड व्हेन देयर इज लेस देन दिस कैंपेन विल गो आउट। तो टाइम रैप जो है जब आपके पास सारी डेटा होगी तो आपको ये तीसरा ऑप्शन भी दिखना शुरू हो जाए। ओके। तो ये आपका टाइम रैपिंग फीचर था। अब मैं अकाउंट स्विच करके दोबारा आपके अकाउंट में जाता हूँ। अब मैंने कैंपेन तो भेज दिया। आप देख रहे हो, आप जैसे ही सेंड का बटन दबाया ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड्स लगते हैं, मेलचिम कैंपेन इनबॉक्स में डिलीवर कर देता है। तो अब मैं अपने इनबॉक्स में जाता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ ऑल ईमेल। तो आप ये देख रहे हो हर्ष मतलानी से मुझे ईमेल आई है, हाय रॉबी हाउ आर यू। अब आप देख रहे हो कितनी पर्सनलाइज्ड और जेन्युइन ईमेल है। मेरा नाम सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है, हाय रॉबी हाउ आर यू। अब मैं आपकी ईमेल खोलता हूँ तो ये आ गई हर्ष मतलानी फ्रॉम HDM@Sonic Biochem। और ये फर्स्ट क्लास आपकी ये सारी ईमेल पर्सनलाइज मेरे नाम से मेरे को आई। ओके। हाँ, वो जेन्युइन लगनी भी चाहिए, वरना जेन्युइन नहीं लगेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये जो है ये आपका कैंपेन जो स्केड्यूल है ये प्रॉपर तरीके से इस तरीके से करी जा सकती है। तो ये जो है अभी देखिए हमने ईमेल डिज़ाइन जो है ये फीचर डिस्कस कर लिया है। कैंपेन सेटअप, अभी मैं ऑटोमेशन आपको क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं वो नहीं डिस्कस करूंगा। मैं रिपोर्टिंग फीचर डिस्कस कर लूंगा आपके साथ अभी। फिर बाकी अपन मंडे करें क्या? हाँ, बाकी एक बार हमें मंडे को तो वैसे भी करनी पड़ेगी सेटिंग। जब आप लिस्ट इंपोर्ट करोगे तो बेशक आप मेरे को बुला लेना तो हाँ, मैं। मतलब वही मंडे अपन जब इस पे काम शुरू करेंगे तो अभी जैसे अपना 500 कॉन्टेक्ट्स का है, तो मंडे लेट्स स्टार्ट सेंडिंग दोस 500 एंड देन ट्यूसडे और वेडनेसडे वी विल इंक्रीज आवर प्लान एंड देन फिर वो 7000 को फिर ट्यूसडे वेडनेसडे में भेजेंगे। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। या सो वी विल डू दैट। सो फर्स्ट 500 लेट्स डू इट ऑन मंडे। ठीक है सर। फॉर मंडे आप चालू है आप लोग का? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि हमारा शायद हमारा हाफ डे है। अच्छा, आपका हाफ डे है। तो क्या वो गणेश चतुर्थी विसर्जन है ना, ओके 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 ओके। तो अपन एक काम करते हैं ना, फर्स्ट हाफ में कर लेंगे यही टाइम 11 12 11 11:30 से ठीक 1। है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो मंडे का अपन फिर ये कर लेंगे। 500 लोगों को तो भेजते हैं, मेरे ख्याल से 500 को भेजने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो सर ये आपका डेटा अपन जब अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद हाउ मच टाइम दिस विल टेक, मेलचिम्प विल टेक टू एनालाइज एंड फिगर इट आउट? डेटा इंपोर्ट करने के बाद आप इंस्टेंट भेज सकते हो, मेलचेम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई टाइम ऐसा नहीं है कि उसको तो वो कुछ सॉर्ट करने में टाइम लगेगा या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर तो ऐसा बढ़िया कुछ भी है, नहीं। तो अपन कर ही लेंगे। और मेरे पास जो मेल है वो रेडी है, ब्रोशर रेडी है, बस अपन को सब वो अटैच करके एक मेल बनानी है और भेजना है। ठीक है ठीक है।
आप मेरे को एक सरसरी तौर पे, मैंने आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुझे 10-15 रिकॉर्ड्स की डेटा भेज दो, तो मैं अपने हिसाब से भी एनालाइज कर दूंगा। क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये आपकी जो पेड लिस्ट है, आपने लिस्ट खरीदी है, तो मेलचिम्प को जो है ये नहीं पता लगना चाहिए कि आपकी पेड लिस्ट है, क्योंकि मेलचिम्प की जो पॉलिसी है वो ऑप्ट इन लोगों को ही भेजता है ईमेल्स। तो एक बारी मैं लिस्ट को एनालाइज कर दूंगा कि अगर लिस्ट में मुझे ऐसे लगता है कि कुछ पुरानी ईमेल है या कुछ है, वेरीफाई करके एक बार मैं रिपोर्ट निकाल लूंगा। अगर रिपोर्ट सही है, मैं परफेक्ट है। आपको एक काम करता हूँ अंकित, अभी आपको एमकेटी वाली आईडी से मेरे को सीसी में रख के आपको 10 या 15 कॉन्टैक्ट उस लिस्ट में तो शेयर कर लेगा। हाँ जी, ठीक है, डन। डन। आप मेरे को 15 भेज दो कम से कम, तो मैं आप 20 भेज देता हूँ, मैं आपको 20 भेज दूंगा। ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। डन। रैंडम भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को रैंडम बेटर रहेगा। कोई बीच से निकालना, कोई ऊपर से निकालना, कोई नीचे से निकालना। हाँ, अरे वो फर्स्ट 20 भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। तो आप जो है ये आपका हो गया सर। उसके बाद सर, नहीं नहीं, आप फर्स्ट 20, पता है क्या है, क्योंकि जो आप लिस्ट जब खरीदते हो ना, तो ब्रोकर पहले पहले कई बार अच्छी डेटा देते हैं, बीच में डेटा इतनी अच्छी नहीं होती, तो उससे ठीक है, और ज़्यादा अच्छी है मेरी एनालिसिस होगी अगर फर्स्ट आप। 5, फिर उसके बाद 1000 के बाद 5 ले लेगा, हाँ फिर हाँ, 5, फिर 4000 के बाद और 5, फिर 7000 वाले में 5, ऐसा कुछ कर लें। ऐसे कर लो सर, बढ़िया रहेगा फिर। ठीक है, तुम तो ये रैंडम आपकी, पूरी लिस्ट भेजूंगा। 5, फिर 2000 के बाद 5, फिर 4000 के बाद 5, और फिर 6000 के बाद कोई भी रैंडमली 20,000 सेलेक्ट करके मैं मेल आईडी बता रहा हूँ, तो तुम मेल आईडी लेके मेरे को सीसी में रख के अभी हाथों हाथ ही काम लंच के अभी ये मीटिंग के बाद ही कर लेना, तो उनके पास लिस्ट पहुंच जाएगी, तो वो एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, अभी कर लेंगे अपन ये हाथों हाथ। सही है सर। तो ये आपकी देखो कैंपेन आपकी बन गई। अब ये बटन लिंक चल रहा है। अब लास्ट स्टेप क्या होती है? लास्ट स्टेप होती है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कैसे देखते हैं? आप अपनी कैंपेन सेक्शन में जाओगे, तो अब आप देखोगे कि मेल चिप जो जो आपने ईमेल्स भेजी हैं उसके एनालिसिस हाथों हाथ आपको देता रहेगा। यहाँ पे बताएगा कितने लोगों ने खोली है, यहाँ पे बताएगा कितने लोगों ने क्लिक करी है। और आप और डिटेल्स जानना चाहते हो, जैसे कि भाई किसको बाउंस हुई, किसको नहीं हुई, किसी ने अनसब्सक्राइब किया, तो वो डिटेल्स यहाँ पे बताते हैं। अब देखो इंस्टेंट रिजल्ट आ गया। इंस्टेंटली उसने बता दिया कि एक बंदे ने खोली है और एक बंदे ने क्लिक करा अच्छा, आपने खोली थी तो आपका आ गया? है। इमीडिएट आ गया सर, इमीडिएट ट्रैकर है इसमें। ये बढ़िया है यार। ये आपको ट्रैकिंग करके इसने बता दिया कि रॉबी ने ईमेल खोली है। ये भी बता देगा कि रॉबी ने कितने बजे खोली है। तो मैं जब क्लिक करूंगा तो अब मेरी एक्टिविटी आ जाएगी इस कैंपेन से रिलेटेड। तो इसने मुझे ये बता दिया कि 12/3 पे इसने कैंपेन खोली है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि मतलब मान लो 7000 में से जितनों ने खोली है, वो खोलने के बाद अगर उनके मोबाइल नंबर भी दिए हुए एक्सेल में, तो जिन्होंने खोली और रिप्लाई नहीं करा, तो आई कैन कॉल देम अप एंड से कि आपने मेरी मेल पढ़ी थी, तो आप क्या इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, तो वो यस यस यस, यही तरीका है सर, यही तरीका। अपना इजी हो जाएगा काम। और बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। और जिन्होंने क्लिक किया है वो तो मतलब समझ लो बहुत ज्यादा हॉट है, क्योंकि अगर उन्होंने ईमेल खोली उसके बाद क्लिक किया और आपके वेबसाइट में गए और आपकी इंफॉर्मेशन ली, तो उनको तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उनको आप रीटारगेट कर सकते हो इमीडिएटली। और जिन्होंने खोला लेकिन कुछ क्लिक नहीं किया, उनको आप एक कॉल कर सकते हो, या उनको आप एक दोबारा एक कैंपेन भेज सकते हो टू गिव देम सम मोर इन्फॉर्मेशन। और कोशिश करो कि ज्यादा लंबी ईमेल मत बनाओ, पहली वाली थोड़ा सा मतलब ब्रीफ नहीं, पहली इंट्रोडक्शन। तो छोटी सी, और हमारी प्रोडक्ट लाइंस क्या क्या है, वो प्रोडक्ट और एक ब्रोशर अटैच करके दे देंगे। हाँ जी बिल्कुल। ज्यादा बड़ी नहीं, वो मैं भी समझता हूँ, क्योंकि ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। है। हाँ। तो सर ये था रिपोर्टिंग फंक्शनैलिटी। अब रिपोर्टिंग जब आपके पास आ जाती है ना, उसकी क्या एडवांटेज है? अब आप अपनी रिपोर्ट्स की एडवांटेज कैसे उठा सकते हो? आपने अपनी कैंपेन को दोबारा भेजोगे जब, जैसे मान लो मैं रेप्लिकेट करता हूँ, अब एक नई कैंपेन बना रहा हूँ मैं, बट रेप्लिकेट करके बना रहा हूँ सो दैट, क्योंकि टेम्पलेट तो वही है मेरा। तो अब मैं लिखूंगा सेकेंड ट्रायल। अब मैं सिर्फ उसी बंदे को भेजना चाहता हूँ जिसने मेरी कैंपेन नहीं खोली, क्योंकि जिसने खोली है उसको तो मैं अब रीटारगेट करूंगा ही करूंगा, लेकिन जिसने नहीं खोली उसको मैं दोबारा चाहता हूँ, एक और मौका देना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ ग्रुप और न्यू सेगमेंट, और यहाँ पे अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, उसको बोलूंगा कैंपेन एक्टिविटी डिड नॉट ओपन और लास्ट कैंपेन। अब मैं अपडेट करूंगा तो आप देख रहे हो दो में से सिर्फ इसने एक को फिल्टर किया, क्योंकि हमने दो लोगों को कैंपेन भेजी थी, एक ने ईमेल खोल ली, एक ने नहीं खोली।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एक हफ्ते बाद दोबारा भेजूंगा, क्योंकि अब एक बार तो भेज दिया, बार बार अगर इसके पीछे पड़ जाऊंगा तो ये थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा। तो मैं अब इसको पहले से ही स्केड्यूल कर देता हूँ, मान लीजिए 4 सितंबर के लिए, और मैंने स्केड्यूल कर। तो अब मैं, इससे क्या होता है कि ईमेल मार्केटिंग का फायदा ही ये है कि आपकी जो लिस्ट है 7,500, जैसे कि हमने नंबर्स डिस्कस किए, कि आपकी जो लिस्ट है उसमें 7,500 कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उसमें से 1,500 खोलेंगे। मतलब ये, मतलब मेरी प्रिडिक्शन है कि ज़्यादातर जो है 20% ओपन को अच्छा माना जाता है। तो अगर 20% मान के चले तो 1,500 लोग खोलेंगे, तो बाकी जो 6,000 है उनको एक दूसरा चांस भी देना चाहिए। तो आप उनको कर सकते हो कैंपेन बाद में इसके थ्रू, रिपोर्टिंग के थ्रू। तो ये आपकी कैंपेन चलेगी। अब ये सिर्फ उसी को शेड्यूल होगी, 4 सितंबर को होगी, अभी नहीं होगी। तो ये आपने रिपोर्टिंग को भी फुली मैक्सिमाइज यूटिलाइज कर लिया। चलो अच्छा है। ऑटोमेशन प्रोसेस जो है वो मैं आपसे मंडे को बेशक शेड्यूल कर लेते हैं, मंडे सुबह डिस्कस भी कर लेंगे, और आपकी पहली कैंपेन का भी श्री गणेश करेंगे, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी है तो वो लकी दिन भी है। हाँ मंडे करते हैं, 500 लोगों को करते हैं मंडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे फिर बाकी को करते हैं। ठीक है सर, डन। चलो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राइट सर, नहीं नहीं सर, इट्स माय जॉब। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। यस यस चलो ऑलराइट। thank you। अपन फिर मैं आपको अभी, अंकित आपको मेल कर रहा है एक बार अभी लिस्ट वो, अच्छा सर, ठीक है। यू विल गेट एन एनालाइज करके कि वो 20 लोग कैसे क्या है। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। डन। और आपका पेमेंट आज हो जाएगा, मैं और प्रोसेस करके उसको बोलता हूँ आज ही कर दे, तो आज तो ही नाइस, तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो नाइस ऑफ यू। नहीं सर, मुझे पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको एक बार ही बोला, बट आपको पता ही है। हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, हम वो हमारा कभी भी ऐसा कुछ होता ही नहीं, हम पेमेंट पहले ही करते लोगों का।